Thank you so much, everyone, for joining. We'll just wait for one more minute for anybody, for participants to join in. I think. So once again, welcome everyone for this another webinar session that we are hosting. All the dignitaries present in the session, thank you all for joining. So today's webinar is on the topic Climate Ready Agriculture in Uttar Pradesh, mainstreaming DRR and CCA. So as we all know, Uttar Pradesh is susceptible to frequent and recurring natural disasters every year, causing significant damage to human lives, biodiversity, environment, and infrastructure. And also, Uttar Pradesh is one of the most vulnerable states prone to floods. We know that DRR and climate change adaptation are critical components in reducing the impact of disasters by addressing vulnerabilities and enhancing resilience in communities and regions prone to natural disasters. So this webinar, we are mainly conducting with the objective of raising awareness about the vulnerability of UP to natural disasters, particularly floods, droughts, and extreme climate events. Also to highlight the economic and human cost of these disasters, emphasizing the need for disaster risk reduction and CCA. And also we would be providing insights into the concepts of mainstreaming DRR and CCA, and also to explore critical role of technology in disaster preparedness and response. So with this, I would like to start the session. And for today's session, we have Dr. Banu, who is the convener and member advisory committee of IAG UP. Sir, I would like to welcome you to set the context and also to introduce this our distinguished panelists for today. Thank you. Thank you. Thank you so much. Respected Honorable VC, is it audible? Yeah. Yes, sir, it's audible. Respected Honorable VC, UP SDMA, respected Honorable VC, Vice Chancellor, CSA University, Kanpur, and other colleagues. Today, we are just discussing, as you already discussed, that climate smart agriculture. What is it and how it is going to be perceived, and rather how it is going to be utilized, the wisdom of today's scientists for tomorrow's agriculture or future generation. It is responsible for raising our economy. It is responsible for raising livelihood. It is responsible for we can say the kind of suffering we are going to have or we are having as of now. This is very important because if we see Uttar Pradesh, because particularly we are talking of Uttar Pradesh, and this discussion is about to be this entire issue is going to be discussed in COP also. So 2,40,000 hectare land is there in UP. Out of his 2,41,000 hectare land is cultivable, most probably, and it is serving 42% of the state economy. So we can imagine that how important it is. If maybe 42% of economy it is serving, but 70% people of UP are based on this. So I think this is entirely a big issue we need to discuss. And as we have been discussing in SDMA, we came to a conclusion that state economy or state's state is not going to be improved in the field of health, in the field of agriculture, in the field of socioeconomic independence, if agriculture is not put to the task. Agriculture concepts are, the real concepts are not taken care of. The way, we are doing as business as usual is not going to help us anymore.
and a roadmap has to be prepared. So this entire thinking concept has to be brought in, and maybe today it is a beginning. Maybe not beginning. We have just stepped out of it, the issue, and we have taken few steps. Now more and more steps to be taken, because it is said that 25 to 30% of climate change. I mean, the climate change will reduce our income by 25 to 30% in due course. So it must be adaptation, and our mitigation has to be thought of. So keeping all these things, we need to understand that how this workshop, I mean, the series of workshops, you can say, need to be taken, and at different level, different kind of experts with different subsectors, we are going to discuss in a phased manner. So today I welcome everybody, and I request our Honorable VC to say a few words to make a start of today's meeting. Jai Hind, ladies and gentlemen, and thank you, Dr. Bhanu, to introduce this subject, which is so important in context of Uttar Pradesh. I will straightway like to commence the proceedings by saying that agriculture is the mainstay of the business, is the mainstay of livelihood, is the main issue of people of Uttar Pradesh. And when we look at the kind of change in the weather pattern, the risk assessment, the kind of losses which have occurred in the recent past or 4 or 5 years, and ever-changing weather, ever-changing and challenging weather, which continues to warn us, we feel that the most important business, the most important activity which happens in Uttar Pradesh is going to get affected, and a vast majority of people of Uttar Pradesh will directly be affected. And therefore, we need to, first of all, discuss the issues which are challenging in nature, changing very fast. There are new challenges are emerging almost season to season. And once we study them, we will be able to change our agricultural pattern, whether we change the cropping pattern, whether we change the maturing of the particular type of Rabi or Kharif crops, and so on and so forth. Now, this is where we feel that the scientists will also have to be taken on board, and we also have to take the 70% people which Dr. Bhanu was talking about people who are directly or indirectly involved in agricultural activity. Uttar Pradesh is basically a agrarian state, that you all will agree with me. And therefore, it is very important for us to develop this topic. Otherwise, it may be too late by the time the intervention takes place. And in fact, we are already late as our time schedule is concerned, but never mind on that issue. The beginning has been made by UPSDMA to ensure that the kind of business which Uttar Pradesh does through the last 75 years, 80 years of independence, I think Honorable Prime Minister and Chief Minister both have shared the concern as also looking at doubling the income of the farmers to bring in the societal changes in the society, so that there is an economic activity which takes place even for the people who are involved in agriculture. And that is where I'm saying whether there has to be a change in the cropping pattern or traditional crops only we are growing, why not diversify it? At the same time, even if the commercial crops have to be grown, in view of the changing weather pattern, whether the maturity period, which can only be reduced by the scientists, say a Rabi crop or a Kharif crop, whatever number of days they are to be matured, in case we cut it short, because we have experienced the monsoons have been very erratic, both in duration, in intensity, and what have you, that sometimes there's a total gap. While we may be covering 95% rainfall of the previous year or this year, but
it has been so erratic that 15 or 20 days there has been no rainfall. And there are areas in Uttar Pradesh which are rain-fed only, where there is no other system, whether by the canal system or by tubewell, the water fields can be watered. Therefore, there is a need for factor all these issues wherein the scientists will have to be taken on board. And we'll have to be very practical in whatever we accept at the end of the seminar or the journey which we have started. A proper roadmap will prepare, share it with the government, while government will always be on board, but in writing, we will put down, and thereafter, possibly, it can again be perused every year, or the challenge, because the challenges are changing very fast. There are new challenges may come up, but something which exists today and which we foresee in next 4 or 5 years, climate change is definitely there. So how do we adapt this climate change in part of the agriculture? That is what we need to discuss. And once the scientists agree to something, we will also have to convince the people who are directly involved in agriculture that there is a requirement to change. And by doing all this, I think we should be aiming at what Honorable Prime Minister and Chief Minister said, that double income as far as agriculture is concerned. And these are the main issues for which we are starting this journey today. And we hope at the end of it, we'll be able to produce a paper which is implementable. We are looking at a concise paper which is implementable, and wherein the roles and responsibilities of all categories, from the scientists to the, you can say, officials, to the people who are directly and indirectly involved in agriculture activity. Agriculture is a huge subject. It's not only merely farming. There are sub-branches of agriculture, and to my mind, I think there are over 13 of them activities which take place under Ministry of Agriculture. And therefore, we are also likely to focus. Farming, of course, is the main issue, but there are other subjects involved. Basically, orchards are there. Mango is the main crop as far as UP is concerned. Even guavas are also produced in number. That's what I'm saying. There are subsidiaries of agriculture, so the branches are too many. It's a huge subject, and therefore involvement of people will be there. And once we complete this journey, I think we can thereafter, having decided what is to be done, then on a yearly basis carry out a review and bring in the changes which are required to sustain it for future. Otherwise, if you are not future ready, I think there will be problems after about another 4 or 5 years, as far as I'm concerned. And with that, I will leave it to the August gathering. The specialist here with us has also to work out the, first of all, we have to prepare a concept note, and thereafter we will go back to the government for the approval of the seminar. And as I said, that with a promise to the government that at the end of it, we'll give a implementable roadmap as far as agriculture is concerned, involving the DRR, involving the CAA, and the likely changes which are required to be brought in. At the same time, keeping our farmer friends, 70% of the people also on board during our discussions or way forward. With that, thank you so much for all that, and I leave it to the specialist people to take it off from here. Thanks so much, and Jai Hind. VC is not joining. कोई बात नहीं, VCCSA is not joining. He is in a meeting. कोई बात नहीं, कर लीजिए. No problem. So I like to leave. आप कर लीजिए. ठीक है. आप बच्चे please करो. VC is leaving. Please, sir. अच्छा, ठीक है. तो अभी मैं ईश्वर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की चर्चा शुरू करें. Hello. VC is not joining. उनका कि 1.5 घंटे किसी मीटिंग में है तो पता नहीं. Hello.
VC, CSA, ठीक है। नहीं, ठीक है, बात हेलो, hello. Thank. Yeah, Yes, please. sir. VC CSA is Chandrasekhar Azad University is not available at the moment. So you can start directly with Vikrant, with our honorable note, yeah. Yeah, sure, sir. So actually, even Vikrant sir is having some technical issue. So I think we'll move forward with our next speaker. So I would now like to welcome Brigadier PK Singh, who is a senior advisor of UPSDME, to talk about integrating sustainable practices in agriculture. Especially, we are focusing on exploring of eco-friendly and sustainable farming practices to mitigate the impact of recurring natural disasters on agriculture. Sir, thank you so much for joining us, and we are looking forward to hearing from you. Over to you, sir. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir, you are well audible. Thanks a lot. Thank you very much. Hindi or English? Mixed. Mixed. Okay, thank you very much. I must thank you, Bhanu Saab, and everybody for giving me an opportunity to share my thoughts. I'm no expert on agriculture. Let me honestly admit first. But I will definitely share with whatever wisdom I have some of my fundamental thoughts on the subject. The subject exploration and eco-friendly agricultural practices. It's a very complex subject, and more so in the context of the state of Uttar Pradesh, for the reasons, essentially two reasons I would say. One is firstly the importance of this sector for the state. Bhanuji also highlighted on this, even the VC has covered this. And second is the kind of risk the state agriculture is subjected to in the present day circumstances, call it because of the climate change, or for you name number of hazards, the floods, you said heat waves and drought and everything, for various reasons, whatever way we are subjected to different kind of risks. First, let me just cover in very brief the importance. Now the importance, and I would say this because it is very important to first understand the significance of the sector, and then you relate that with the kind of risk we are now exposed to. When we talk about the significance, let me just give few statistics. The state of Uttar Pradesh, predominantly agricultural society here, contributes about approximately 8% of the national GDP. Bhanuji highlighted that about 65 to 70% population is directly or indirectly dependent on the agriculture. Agriculture directly and the allied sectors, like you take out the transportation, the agro industry and everything for that matter. And if you want to, take into account the agriculture's contribution in the state's GDP, if we talk about the primary sector, it contributes about more than 24 to 25% of the GDP. So that's having been the importance. Risk we will just cover a little later. Now, there is definitely a very distinct need to mainstream the DRR into the agricultural practices. And this is not the first time we are talking about it. We take you back to the Disaster Management Act, which talks about mainstream the DRR into the development sectors, and the agriculture is one of the development sector. So there is and if you also talk about the Sendai framework of disaster risk reduction, the 4 priority areas, I would recall the attention of people. The first priority talks about understanding the risk in all its dimensions together. Whether how does it affect the agriculture, how does it affect the livelihood, how does it affect the economy, how does it affect the health factor, how does it affect the environmental. So there are so many areas where it is affecting today. Now, if that be the case,
the importance is when we talk about the first priority area of the Sendai framework, it talks about the understanding of risk. It directly says about the awareness. Now, one need to be aware of the importance and the risk, and therefore the first important thing which comes out very loud and clear is to launch an awareness campaign. Awareness campaign at the grassroots level. We keep talking about the diversification of the crop pattern, changing the quality of seed. It is a, the cropping pattern today in the country or in the state is a kind of a culture. We grow rice, we grow wheat, we grow anything for that matter, and we have been growing for number of years, number of decades. And one tells ki you now change it to diversify it. It's not very easy. It needs a great amount of education to the people, making them aware of the losses, what they're likely to suffer, and then how can they cope up with that. So awareness campaign has to be very, very, forceful, we have got to go very, very vehemently on the subject. And then the next issue which comes, which is also, if we go through the IPCC assessment report, fourth assessment report, a lot of discussion takes place on the adaptation and mitigation. We have got to take a very balanced approach today in the state of adaptation and the mitigation both. IPCC fourth report says you can do any amount of adaptation. The climate change is so rapid and so rampant and so fast that you may not be able to cope up. So therefore, there is a need of mitigation. And if you take on only the mitigation, your survival today, if I may use those words, your survival may become very difficult today. So you have got to take a very balanced approach. I'm not saying this. This is the IPCC fourth assessment report, and so is the agriculture sector. Now, when we talk about the adaptation and mitigation, taking a balanced approach, we need to look at one area which I feel and where I have done a bit of research is the area of agroforestry. The state of Uttar Pradesh has signed a memorandum of understanding with TERI, the Energy and Resources Institute, for the, utilization or introduce a system of carbon credit into the agriculture sector. Now, agroforestry has got various advantages. Firstly, as I said, it is addressing adaptation. It is also addressing the mitigation, both together. A farmer gets a financial support, that is one. Second is you are going into the neutral fossil fuel, emission state, because which is the national commitment. Our Prime Minister has given a commitment to the world globally that by 2070, we should be carbon neutral. Our emission should be net zero. So agroforestry would also support that national commitment to the globe. And third is the agroforestry would also develop a kind of a microclimatic zone in the area around, and it has very significant benefits in your day-to-day routine even today. Like for example, a small little thing I would say, the a group of trees planted around, it's also called the hedging agroforestry, because the farmer is kind of advised to do the agroforestry along the boundary of his farms. So you develop a kind of a microclimatic zone around that area. So agroforestry is one thing which I think, and it also should be linked to the carbon credit, because as I said, there is understanding and there is, I'm told, I read also in the newspaper that there is a cabinet meeting shortly on the subject in the state wherein this issue will be taken forward. So like 6, if I'm not wrong, what has been listed is about 6 carbon credit unit would give about $1 to the farmer. So accordingly, a tree takes about 4 to 5 years to develop the foliage and create a kind of a reasonable kind of a carbon sink with the foliage.
So that is the one thing I think we should need to look, because that addresses adaptation, that also addresses the mitigation. It's a kind of a experimental stage, but I think unless we experiment and we take the new things forward, we will not be able to make a headway. The another issue which I feel, which is very, very pertinent today, is the loss of, the relationship between the water bodies, the wetlands, and the agriculture. The state is losing, even the country is losing phenomenal number of water bodies. And if you look at the last 2 to 3 decades, there have been humongous amount of losses as far as the water bodies are concerned. A wetland, in our awareness, I again take you back to the awareness where I say even this needs to be, promulgated to the all stakeholders. The wetland is not only a wetland which gives you water for drinking, washing, and the agriculture. It also creates a microclimatic zone around. It also develops the flora and fauna. The microphytes in the water, in the wetlands, they also act as a carbon sink. So it also raises the water table. It also absorbs the floods in the areas where the regular flooding takes place. So there are n number of examples of the wetlands which we have got to look into, try and revive them, try and create a new one. Like we used to have historically, every village have a about the water table. There are many other advantages which is lost. I think that you go village after village, you travel through train or bus, you find very little water bodies, and the ponds are there, where every village must have a percolation pond in addition to small little the village ponds, which is meant for domestic and other purposes. Water table will go up. And the another area where our state government which is could glean through the open sources, is there are plans to increase the green cover to about 15% by 2027. Today we are talking about the green cover is about 9% or 9.23% as per the government sources report. And if we talk about the forest cover, there's a difference in forest cover and in green cover. When talk about the forest cover, it's about abysmally low 6%. So we need to have a very, very systematic approach to address the issue of creating these green belts around the villages, around the farms, and link this also with the carbon credit and the agroforestry. So your agroforestry will take care of your forestation problem, which is state is facing today, and your water bodies will also create a green belt around. So it is not that it is in isolation. We are talking about the green belt or the forest, and talking about the water bodies, or we are talking about the carbon credit, or we are talking about this all clubbed together and we take it forward. There have been enough spoken about the diversification of crops, and diversification of crops has many advantages. The soil erosion, the pest control, pest management. You talk about the weed management in the fields and all, but it has a challenge, as I said earlier. And we need to address the challenge. Challenge is, it's not a problem. We don't talk about the problems. Problems are there everywhere. These are the challenges in life, and we need to address that. And we need to have a clear-cut policy, clear-cut, approach paper on the subject, that how to go about the diversification. It's not very simple. Renewable energy, use of renewable energy in this agriculture sector is another area. We used to have, need to have the solar PV pumps, the dryer, bi-directional energy meter, which will, a villager, a farmer will install it. This is again another source of income for we talk about the diversification of livelihood. He will create a grid, he will create electricity, and whatever he is not using, he will put in the grid and he will get the money for that. So these are the government policies need to support that in terms of, the subsidies,
in terms of, I would say negatively, is the taxing the emissions today. We need to tax the emissions, but the fact is that it's not a very people-centric approach that you tax the emission. You do it, you will have dharnas and people sitting right next door. So those are the difficult thing, but these are the political challenges. We need to address them. Unless we do that, ethanol is another area, sugarcane production, which is now we are looking in a larger way. I read some time back that one Vistara flight from Delhi to Mumbai flew with about 17 to 18% of with biofuel. This happened this year, early part, I think March, April sometime. But I also read another news item alongside where it says that your aviation industry, essentially the Air India and the Indigo and one more, they are planning to buy almost about 1,000 aircrafts. So the 1,000 aircraft is the growth scenario where you need to grow. Aviation sector is growing with that phenomenal speed. And this 17% or 16% of biofuel in the aviation fuel mixed is the climate change or the greenhouse gas emission addresses that. But is it manageable proportion that 1,000 aircrafts we are buying? I'm not sure whether we are buying those 1,000 aircrafts as a modification or the modernization fleet, or it is a replacement fleet. But the fact is you're growing so rapid speed that would you be able to match up with that? So ethanol is one area. It's again for the farmers' benefit today in the agriculture sector. We must promote ethanol for number of reasons. For the farmers' income, firstly. Secondly, we are overgrowing sugar in the country. So if we are overgrowing sugar in the country, let's divert some or large portion of the sugar and sugarcane to the ethanol, which will address your greenhouse gas emissions. So ethanol is one, biomass is another area, wind another area. Let's develop the fisheries and the dairy, because that's part of the agriculture sector. And the word about the organic farming, because the organic farming has got many advantages. In a sense, like it reduces the CO2 signature, it reduces the methane signature, it reduces the nitrous oxide signature. So organic farming is another area. So these are the few of my understanding. Let me just, before I finish, give one report which I read, and this report is, to me, it's disturbing, that each 1 degree rise in the temperature would reduce your wheat production by 6%, rice production by 3.2%, maize by 7 to 8%, and soya bean by 3.1%. So this, to me, it is very disturbing because temperature is rising, and as per the report also, it will continue to rise even if we do our best for next decade or 2 decades, and thereafter, if we are doing enough, then it will stabilize, and thereafter it will decrease. So these are the somewhat my whatever little study or research I had done, my views on the subject. I once again thank all for giving me the opportunity to share my thoughts. And over to you, sir. Rest is all yours. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, sir, for your invaluable speech. So you rightly pointed out very significant areas for for integrating sustainable practices. You pointed out about agroforestry, which is equally addressing adaptation and mitigation efforts. And also, thank you for mentioning about the loss of wetlands. It's so I have also recently read a report which says India has lost nearly 30% of its wetlands over the last
last 3 decades. Also, you have pointed out about green belts around forest and diversification of crops. And also you have stressed a lot on the mainstreaming of DRR. So I think it's a right time for now to welcome our next speaker, who is Dr. Santosh Kumar, who is working as a project manager at Bal Raksha Bharat. So, sir, thank you so much for joining us for this session. We would like to hear from you on the strategies for mainstreaming DRR and CCA in agriculture. So, what are the specific strategies that we can do also in strengthening the agriculture productivity and the rural livelihoods? Sir, over to you. धन्यवाद। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? Yes, sir, we can hear you. तो आज मैं पूरी तरीके से हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स और वेबिनार्स में ये कहा जाता है कि लोग हिंदी में नहीं बोलते। तो मैं कोशिश करूंगा आज की पूरी तरीके से हिंदी में बात की जाए। और इस चर्चा के क्रम में मैं जो जोड़ने की कोशिश करूंगा उसमें बहुत कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव होंगे और कुछ जो जुड़े हुए हैं उनको साझा करूंगा। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं तो अभी बहुत सारे बिंदु जितने भी हैं उनको हाईलाइट किया गया है। और इस पे अगर हम देखें कि जो बात हम करते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और उसमें भी मुझे याद है, मैं चूंकि इस विषय से भी जुड़ा हूँ, कि जब हम लोग इस विषय को पढ़ते थे तो उसमें जो बात करते थे कि लगभग 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। और जो स्थिति है कि जब आंकड़े कहते हैं कि जो जमीन का रेशियो है एक प्रत्येक किसान के ऊपर आज की तारीख में हमारे देश में, और अगर दूसरे कंट्रीज को तुलना करें तो काफी अधिक है। आंकड़ों में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आंकड़े सारी रिपोर्ट्स में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि जो पूरे प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जब हम बात करते हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण की, डीआरआर की जब हम बात करते हैं, उस स्थिति में यहाँ पे अगर भिन्नता को हम देखें, डाइवर्सिटी को देखें, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो खेती, स्पेशली खेती की हम बात करें, खान पान और रहन सहन की बात है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बुंदेलखंड को लूं तो यहाँ पे अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो लगभग हर तीसरे वर्ष सूखा आता है। पिछले अगर आंकड़ों को उठा के देखें तो लगभग हर तीसरे वर्ष जो है ये सूखा क्षेत्र घोषित हो जाता है। कारण क्या है कि जो खेती है, जिसपे भी अभी बात ऑलरेडी हो चुकी है, की जा चुकी है, कि जो खेती है वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर है, और उसके कारण जो खेती में जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें जो देखा गया है कि जो किसान हैं वो अधिकतर एक या बहुत ज्यादा 2 फसलें ही उगा पाते हैं, और वो फसलें उगाते हैं जो वो पूर्वजों से उसको उगाते आए। जबकि जब हम तुलना अन्य प्रांतों से करते हैं तो वहां पे 3 फसलें, और वो भी वो फसलें उगाते हैं जिनमें कि नकदी, कैश क्रॉप जिन्हें हम कहते हैं। ये भी एक कारण है कि ये एक तरीके से जिस बात को मैं यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो ये जो आमदनी है, जो हमारा आज की तारीख में, अभी मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसके लिए भारतीय अनुसंधान परिषद ICAR जो है, उसकी एक रिपोर्ट में ये अभी यूपी के लिए ही लिखा था 2020-21 की रिपोर्ट में कि लगभग 56% लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के वो कृषि मजदूरी से जुड़े हुए। ऐसी एक बड़ी संख्या जो है, और अगर उनकी जो आमदनी है वो अगर ठीक नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है उनके गृह के संचालन पे पड़ता है। और अगर उनके संचालन को ध्यान में दें तो कहीं ना कहीं उस परिवार के जो बच्चे हैं उस पे उसका असर पड़ता है, चाहे वो उनका खान पान हो या उनका स्वास्थ्य हो या उनकी शिक्षा हो, सभी बिंदुओं पे इसका असर पड़ता है ओवरऑल। तो इसको लेके अगर हम देखें, जो रणनीति की बात अगर हम करें, तो मैं जोड़ना यहाँ से एक चाह रहा हूँ कि
एक उदाहरण दूंगा कि बहुत कुछ अगर हम देखें कि अभी जिस तरीके से देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, उस तरीके से कृषि प्रधान प्रदेश, कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ी है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं जो परिवर्तन लाने की जरूरत है, जो हम जागरूकता के माध्यम से बात करते हैं, अभियानों के माध्यम से बात करते हैं, कि जितने भी हमारे कृषि स्नातक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स निकलते हैं, अगर उनसे बात की जाए तो शायद वो कृषि खेती करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं उसमें इस तरीके का उनका ओरिएंटेशन, सेंसिटाइजेशन नहीं किया जाता है कि वो वापस कृषि की तरफ जाके सकें। सारे के सारे लोग ये समझते हैं कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं इससे जीविकोपार्जन मिलेगा और नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो शिक्षा की पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको सोच में बदलने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इस बात को मैं इसलिए भी जोड़ रहा हूँ कि चूंकि जब हम बात करते हैं कि पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे थे, अगर हम आज से 40 साल पहले की बात देखें, 50 साल पहले की बात देखें, 60s के दशक में जाएं, तो पूरी की पूरी जो खेती थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, जिसमें कि फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज नहीं होता था। उस स्थिति पे हम फिर वापस आ रहे हैं आने अगले 50 साल में। कारण क्या है कि उस समय हमारे पास लक्ष्य था कि हमको उसका उत्पादन बढ़ाना है। आज हम स्थिति में पहुंच चुके हैं कि बहुत सारी फसलों को हम कहते हैं कि इसका उत्पादन हमको कम करने की जरूरत है, परंतु स्थिति क्या है कि जो किसान जिस स्थिति में था आज फिर वही है। आज भी उसकी जो जीवन यापन है, जो उसकी आमदनी है, जो उसका लाइवलीहुड है, उसमें कहीं बहुत ज्यादा उसकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे अभी जो सरकार का जोर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, उसमें मैं सहमत इसलिए हूँ क्योंकि जो खाद और रसायनों का उपयोग होता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और हर घर का कुछ ना कुछ प्रतिशत उनमें भी खर्च होता है। इसको जोड़ने का मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि ये जितने भी जिस तरीके से संदर्भ को मैं लाया कि आज से 50 साल पहले जब विभाग के अधिकारी और जो भी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी जब गांव में किसी प्रदर्शन के लिए जाते थे, जिस तरीके से आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जा रहे हैं, उस समय वो उसका किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए उसकी बात करते थे। तो कहीं ना कहीं आज फिर इस बात की जरूरत है कि जो पूरा का पूरा चक्र है, जिसको हम क्रॉप प्रोटेक्शन फसल चक्र की बात करेंगे, उसमें परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। परिवर्तन इस तरीके से लाने की बात कर रहे हैं कि जो अगर हमको उसकी आमदनी बढ़ानी है, अगर हम उसको सुधार लाना है, तो निश्चित तौर पे उसकी आमदनी को बढ़ाना होगा। और उसका एक ही तरीका है कि जो वो परंपरागत खेती कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं हमें उसके जो फसल चक्र है उसमें परिवर्तन लाना होगा। और उसके लिए भी जो हमारे ये वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, या जो एक तरीके से गांव में भी किसान सहायक के रूप में जो लोग हैं, उनके माध्यम से हमको किसानों तक उनको जोड़कर इसके प्रदर्शन करने होंगे। इसको तो एक तो ये मुद्दा रहा। दूसरा, जितने भी तरीके के ये कहीं ना कहीं जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हीट वेव हो रही है, असंतुलन जो बिगड़ रहा है, उसका कारण क्या है? उसके अगर कारण में देखें कि जितने भी हमारे कई बार परिवर्तन हम आए, जिस तरीके से सुझाव आते हैं वैसे ही खेती बाड़ी में लोग अपने अपने उस पर परिवर्तन ला रहे हैं। उसकी वजह से जो खेती की उत्पादन में फर्क आया या उनकी फसलों की टाइमिंग में, समय में फर्क आया, लेकिन ओवरऑल जो हमारा जो जलवायु मंडल है उस पे हमने छेड़छाड़ की और उसमें परिवर्तन आया। आज हम देख क्या पा रहे हैं कि असमय गर्मी आ जाती है, जो ठंडक है वो कम पड़ती है, और जिससे भी हमारी फसलों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि अगर समय से नहीं हुआ तो उसमें फसल का भी उत्पादन उतना बेहतर नहीं होगा। उसको ध्यान में रखते हुए ये जो अभी पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी का 10 पॉइंट एजेंडा है, 10 बिंदुओं में जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें ओवरऑल समावेशी की बात की गई है, इंक्लूसिवनेस की जो बात की गई है, उसमें अगर हम देखें तो उस इंक्लूजन को लेके जितने भी उनके 10 पॉइंट बिंदु हैं, उसमें जो यहाँ पे अगर हम
जो मेरा टॉपिक मुझे था स्टेट रणनीति की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर उनके लाइवलीहुड में उसको जोड़ने की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो गांव की जनता है, उसको इस विषय में जागरूक करने की जरूरत है, जो चाहे वो अभियान के माध्यम से हो या कोई दूसरा माध्यम हो, कि उनको किस तरीके से वो कैश क्रॉप से जुड़ सकते हैं। जैसे आज की तारीख में अगर हम पुराने में जाएं तो हमारे पूर्वज तेल का उपयोग कम करते थे, आज तेल का उपयोग बढ़ गया है, तो तिलहन की फसलें उगाई जा सकती हैं। हमारे यहाँ जब भी हमारी होती है तो हम बचपन में रोटी ज्यादा खाते थे, आज सब्जी ज्यादा खाने लगे हैं, क्योंकि यही सलाह दी जाती है। जैसे जैसे आपका होता है वैसे ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में सजावट के लिए फ्लोरिकल्चर का भी यूज शुरू हुआ, यानी हम बहुत सारे सजावट के माध्यम से जो है फूलों का उपयोग कर रहे हैं। तो वैसे भी जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कृषि में, तो कहीं ना कहीं मत्स्य पालन, दुग्ध पालन और उद्यान शाला की ये जब बात करते हैं, तो ओवरऑल सब में जो है मिलके हमको उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस पूरे विषय को लेके अगर हम देखें तो जो बाल रक्षा भारत है, जिसकी तरफ से मैं जुड़ा हुआ हूँ आईजिम के मेंबर के नाते, तो संस्था जो है वो भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम के साथ मिलके काम कर रही है, और विभिन्न प्रांतों में एसडीएमए के साथ मिलके काम करती है, और आईजी के साथ मिलके काम कर रही है कि किस तरीके से जो सबका उद्देश्य एक ही है विकास का, उसमें मिलके काम किया जाए। यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल ग्रास रूट लेवल पे, तो हम बच्चों के साथ काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, और विशेषकर इस पूरे मुद्दे पर पिछले 5-6 साल से मैं जो देख पा रहा हूँ कि हमने कई जगह बच्चों के साथ उनको रिजिलियंस बनाने के लिए प्रिपेयर्डनेस को लेके स्कूलों के साथ मिलके और उनके बहुत सारे वर्कशॉप आयोजित किए हैं और उनको व्यूज को अपने कार्यक्रमों में समाहित किया है। समुदाय के साथ भी किस तरीके से प्रिपेयर्डनेस तैयारी उनमें की जाए, उनके साथ भी हम बहुत सारी गोष्ठियां, डेमोन्स्ट्रेशंस उनके साथ कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो अभी यूपी में ही अगर हम बात करें कि जो सूखा की स्थिति थी या पानी की दिक्कत थी या बाढ़ जब जब आई, उन स्थितियों में हमने उनके साथ मिलके काम किया और उससे निपटने की कोशिश की, सरकार के साथ मिलके, एसडीएमए के साथ मिलके, इन्हीं के मार्गदर्शन में। तो मेरा अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक ये होगा कि कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनकी जो लाइवलीहुड की स्थिति, यानी जो आमदनी का जरिया अगर कम है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो बच्चों पे पड़ता है और बच्चे कुपोषित होते हैं, जिसके लिए एक बड़ा पूरा का पूरा सरकार का तंत्र लगा हुआ है, एक ऊर्जा जा रही है। उस विषय पे अगर हम एग्रीकल्चर पे ही काम कर लें और उसके परिवार की माली स्थिति ठीक हो जाए, तो शायद वहीं से भी उसकी नींव मजबूत हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते जो एनजीओ की भूमिका है कि कहीं ना कहीं जो ब्रिगेडियर साहब ने बात कही कि हम जागरूकता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं और इसको करना चाहिए। एक बड़ा का जो पूरा सिविल सोसाइटी नेटवर्क है, जो हर जगह मेरे ख्याल से गांव से लेके पूरे देश तक, उसको मिलके इसमें साथ काम किया जा सकता है। और जो एक बात अभी आ रही थी तालाबों की, उस पे मैं अपना एक एग्जाम्पल अपने ही गांव से देना चाहूंगा कि जब मेरी उम्र छोटी थी तो जो मेरे गांव में करीब 8-10 तालाब हैं, और एक बड़ा तालाब था जिसकी मेरे ख्याल से कम 50 एकड़ का रहा, जिसमें मुझे याद है कि उसके सुंदरीकरण के पैसा आता है, आज से 6-7 साल पहले 5 करोड़ रुपए केवल उसके सुंदरीकरण के लिए आया था, तो काफी बड़ा है, जिसमें हम लोग बचपन में नहाते थे और कुछ लोगों को उसको जीविकोपार्जन भी मिलता था, जिसमें वो मत्स्य पालन और सिंघाड़े का उद्योग किया करते थे। आज की स्थिति में वो सिमट के मुझे लगता है कि शायद कुछ ही एकड़ का बचा होगा, और बाकी जो हम बात कर रहे थे कि जो वेटलैंड है उसका भी उसमें उपयोग होता था, उसमें बहुत सारे गांव के सारे जानवर जाके उसमें रहते थे, पर आज की तारीख में सारी चीजें बंद हो गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पुरानी चीजें थी, कहीं ना कहीं उनको भी उसमें शामिल करने की जरूरत है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाकी जो कुछ भी है, हम जो एसडीएमए है, आईजी है, और जो भी सरकार की गाइडलाइन है, उनके बिंदुओं में मिलके ही काम करते हैं।
और आगे भी काम करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट संतोष जी, बहुत अच्छे तरह से आपने नरेट किया कि किस तरह से हम आज अपने जीवन में क्लाइमेट चेंज को परसीव कर रहे हैं, कैसे हम आम आदमी के नज़र से इसको देख पा रहे हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए मोटे मोटे, जिससे इसका क्या प्रभाव पूरे प्रदेश पर दिख रहा है, और हमारे संतोष जी ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से इसका प्रभाव हम अपने जीवन में देख रहे हैं और हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे इसके बदलाव के लिए कुछ कर सकते हैं, या किस तरह की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आपने कही, हम पहले ये सुनते थे गांव में कि ऐसा क्या पढ़ाकू, गांव के शब्द थोड़े अलग होते हैं, ऐसा क्या पढ़ाकू है जिसके हाथ से हल छूट जाए। यानी जो पढ़ा लिखा वो हाथ से हल नहीं छूता था या छूता है आज की तारीख में, तो ऐसा क्या पढ़ाकू जिसके हाथ से हल छूट जाए। आज आपने एक और बात बड़ी जोड़ दी इसमें कि एग्रीकल्चर पढ़ने वाला व्यक्ति भी कभी हल छूने की बात, हल मतलब खेती करने की बात नहीं सोचता है, वो नौकरी की बात सोचता है। शायद ये एक जो आपने तुलना की, और जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ रहा है। मेरे बीच में एक और एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, राकेश कुमार जी, अभी तो मैं उनसे आग्रह नहीं करूंगा, समय आने पर मैं आग्रह करूंगा। वो कृषि विशेषज्ञ हैं और लीड हैं एक बहुत बड़ी संस्था में, कारपोरेट एजेंसी में एग्रीकल्चर के, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा बाद में। लेकिन जो बात मुझे यहाँ याद आ रही है कि कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन, इस पर बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि हाउ टू लोकलाइज द इश्यूज, या लोकलाइजेशन ही आगे आना चाहिए, हम लोकल एरिया पे काम करें और ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखें, वो अलग बात है, वो जानकारी के लिए है। लेकिन हमारा जो विकास होगा, सस्टेनेबिलिटी जो आएगी, वो लोकलाइजेशन में ही आएगी। हमारे सामने एग्रो इकोनॉमिक जोन्स हैं यूपी के, 9 जोन में ये बांटा गया है, और कहते हैं ये मोस्टली जो है अलग अलग जगह में रेनफॉल अलग अलग है, अलग अलग जगह की टोपोग्राफी अलग अलग है, रेवाइंस वहाँ अलग अलग तरह के बने हुए हैं। तो कैसे हम उस 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसको देख सकते हैं। तो तराई रीजन है जिसमें सहारनपुर, बहराइच, बरेली है। वेस्टर्न प्लेन है जिसमें बिजनौर, बदायूं, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत है। सॉरी, सेंट्रल में बागपत है, और साउथ वेस्टर्न में अगर देखें तो आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, अलीगढ़ है। सेंट्रल प्लेन में देखें तो लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, इलाहाबाद है। बुंदेलखंड एरिया में देखते हैं तो झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन की बात करते हैं तो गोंडा, बहराइच, गोरखपुर है। ईस्टर्न प्लेन में अगर जाते हैं हम तो वहां पर बाराबंकी, फैजाबाद, और एक सेकंड, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, वाराणसी है। जोन 9 जो विंध्याचल जोन कहा जाता है, उसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद है। तो इस तरह का जो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बना हुआ यूपी का, उसको देखते हुए हमें कितनी डाइवर्सिटी चाहिए, कितना लोकलाइजेशन होना चाहिए, ये समझने की बात है। हमारे बीच में इस समय डॉक्टर काशिफ साहब हैं। डॉक्टर काशिफ, आर यू देयर? गुड आफ्टरनून सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्लीज प्लीज ठीक है। थैंक यू डॉक्टर भानु फॉर इनवाइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसे हम आज एड्रेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर का, और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद इस इशू में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और एसडीएम में लगातार कई ऐसी एक्टिविटीज कर रही है जिसमें एग्रीकल्चर का जो फील्ड है, सेक्टर है यूपी का, उसे हम टच करें। इसी क्रम में हम लोगों ने कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमओयू के जो प्लान्स हैं वो भी बनाए हैं, और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस इस सेशन के एंड तक हमारा प्लान है हम करें स्टेट में। और बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर के, अगर देखा जाए तो मेन जो स्टेक होल्डर है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं।
तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है कि उनके साथ हम जुड़ें और उनके साथ जुड़ के काम करें। क्योंकि बहुत एक अच्छा इंसाइट जो है वो यूनिवर्सिटी से हमको मिलेगा। फिलहाल आज जिस टॉपिक पे हमें मुझे बोलने को कहा गया है वो बेसिकली आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं आज की तारीख में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनके बारे में बात करने, खासकर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं वो किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डीआरआर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे उसे एड्रेस करती है। मुझे जो लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो आज की तारीख में हमारा पहला इशू होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, खासकर ड्रॉट के लिए और फ्लड के लिए, एग्रीकल्चर वार्निंग सिस्टम तो है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। हम अब उस वार्निंग सिस्टम के साथ हम अपने किसानों को जोड़ नहीं पाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इस अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम किसानों को जोड़ें और साथ में एक बहुत बड़े एक्सरसाइज की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमारे हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस तरीके से एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना सकें ताकि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसे वो मतलब जो वार्निंग्स हैं उनको एसेस किया जा सके और तेजी से जो किसान हैं उन तक उन वार्निंग्स को पहुंचाया जा सके। मेजर लॉस जो हमारे स्टेट में है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बेसिकली ड्रॉट की वजह से है। ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ एरिया जो है वो ड्रॉट प्रभावित रहता है। फ्लड भी रिकरेंट प्रॉब्लम हमारे सामने है जिससे एग्रीकल्चरल लॉस बहुत ज्यादा होता है। मुझे याद है लास्ट ईयर मेजर ड्रॉट की सिचुएशन थी वो स्टेट में थी और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ड्रॉट असेसमेंट का वो बेसिकली वो प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है, ठीक है, जैसे हम स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स करते हैं, बारिश जो है उसे हम मेजर करके हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो ड्रॉट अफेक्टेड है और कौन सा एरिया ड्रॉट अफेक्टेड नहीं है। हालांकि जो दुनिया की समझ है ये बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और ठीक उसी टाइम मुझे याद है कि हम लोग एसडीएमए में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और उस डिस्कशन के बाद ये हुआ कि हमें ये समझना चाहिए कि जो ड्रॉट की कंडीशंस हैं उसको हम किस तरीके से उसका असेसमेंट करें। उसके बाद यूएन के एक बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जिसे आप रिमोट सेंसिंग जीआईएस कहते हैं, उसके थ्रू जो ये जो असेसमेंट है वो बहुत अच्छा असेसमेंट हो पाता है ड्रॉट के लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने उसे स्टडी किया और फिर एक रिपोर्ट बनाई जो रिपोर्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की थी और जिसमें हमारा जो प्राइमरी फोकस था वो ये था कि जो हमारा देखने का तरीका है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर उसे शिफ्ट करना चाहिए हमें। तो हमने कई सैटेलाइट इमेजेस को यूज करते हुए उसकी एनालिसिस की और फिर एनालिसिस करने के बाद जो गवर्नमेंट जिसको फॉलो करती है जब उसके हिसाब से हमने असेसमेंट किया तो हमने ये पाया कि जो हमारा बुंदेलखंड बघेलखंड वाला जो रीजन है सदर्न उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ पे जो ड्रॉट कंडीशन है वो हमें दिखाई दे रही थी। फिर एक दूसरा मेथड है जिसे यूएन इस टाइम रिकमेंड करता है कि सभी देशों को फॉलो करना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स। वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स एक कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजेस से हम ये असेसमेंट करते हैं कि फ्लड कहाँ, ड्रॉट की कंडीशंस कहाँ है। जब ये वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स हमने लगाया स्टेट पे और हमने देखा सिचुएशन तो हमको दिखाई दिया कि जहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि ड्रॉट की कंडीशन है वहां ना होके बेसिकली पूरा जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था वो सीवियरली अफेक्टेड दिखा रहा था वो बेसिकली कि वो ड्रॉट कंडीशन। फिर जब हमने हमने बेसिकली उसकी जब रिपोर्ट बनाई तो हमने गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की कि जब ड्रॉट को जो देखने का नजरिया है उसे बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत ये है कि ड्रॉट जो है बेसिकली वो हम बारिश और टेम्परेचर पे ना देख के उसका वेजिटेशन पे इम्पैक्ट देखें। हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उस पे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है उसको देखें। क्योंकि जो हमारे ये सदर्न वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ट्रेडिशनली ड्रॉट अफेक्टेड रहे हैं। तो क्योंकि ये ट्रेडिशनली हमेशा से ड्रॉट अफेक्टेड रहे हैं तो यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत ही बेसिकली एक रोबस्ट इकोसिस्टम है जो मैनेज कर सकता है लो वाटर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस को। लेकिन जो हमारे बाकी क्षेत्र हैं जो वेस्ट में ना होके बाकी जो सारे एरियाज है ये ऐसे एरिया नहीं है जहाँ का इकोसिस्टम इस तरीके से बना है कि वो वाटर स्कैरिसिटी और हाई टेम्परेचर को मैनेज कर सके। तो जैसे ही बाकी इलाकों में टेम्परेचर में वेरिएशन होता है और वाटर स्कैरिसिटी होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे और वेजिटेशन पे वो बहुत ज्यादा होता है। ये जो इंडेक्स है वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स ये बेसिकली इसी चीज को एड्रेस करता है। वो उस वेजिटेशन की हेल्थ को देखता है और जब हमने इसकी एनालिसिस की तो हमको दिखाई दिया कि हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और जो सेंट्रल पार्ट है उत्तर प्रदेश का ये सीवियरली ड्रॉट अफेक्टेड हो रहा है। ये अच्छी रिपोर्ट थी, इसको हमने एसडीएमए की तरफ से गवर्नमेंट को भेजा था
मुझे पता नहीं उसके बाद उन्होंने किस तरीके से उसे लिया, लेकिन इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हमको यूज करें। और अब ये जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग आम जो जनता है, पॉपुलेशन है, उस तक पहुंचाएं। इसके लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो मैंने बेसिकली शासन में मीटिंग में एक बार कहा था सबसे, कि हमें बेसिकली एक जीआईएस सेल चाहिए हमारी एसडीएमए में, जो इन सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट को और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनको आसानी से पहुंचा सके। तो इस तरीके से जो ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज हैं ये इंपॉर्टेंट है, और हमें बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। उसके अलावा ब्रिगेडियर पीके सर ने और संतोष सर ने बात की वेटलैंड्स की, डॉक्टर भानु आपने भी वेटलैंड्स की बात की, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी फील्ड है वो वेटलैंड है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लखनऊ में जो वेटलैंड्स है उसकी स्थिति ये है कि पिछले करीब 30 सालों में 72% जो वेटलैंड्स हैं वो रिसीड कर गए हैं, मतलब लखनऊ से गायब हो गए हैं। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था यूनिवर्सिटी के लिए, फिर बाद में उसकी जो फाइंडिंग्स है हमने WWF को भेजी थी। फिर WWF ने एक प्रोजेक्ट हमको दिया था जिसमें बेसिकली हमें ये समझना था कि जो वेटलैंड्स हैं वो जो रिसीड कर रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आसपास की पॉपुलेशन पे। तो उस पे हमने कई रिसर्च, काफी अच्छी रिसर्च की है, कई पेपर्स हमने पब्लिश किए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि बहुत मेजर इम्पैक्ट है उन वेटलैंड्स का आसपास की कम्युनिटी पे। तो वेटलैंड बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देते हैं जो आसपास के लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है। इनको जनरल टर्म में हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। ये इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सारी है, जैसे जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली अपने आसपास के खेतों के लिए एग्रीकल्चर उसमें सिंचाई के लिए पानी लेते हैं वेटलैंड से, तो वो एक इकोसिस्टम सर्विस है। उसमें कमल होता है, कमल गट्टा है, कोका बेली है, सिरका है, सिंघाड़ा है, फिशेज हैं, और इस तरीके की 50 और चीजें हैं जो ट्रेडिशनली हमें वेटलैंड से मिलती रही हैं, अभी भी मिल रही हैं। लेकिन जो हमने स्टडी की पूरे लखनऊ में डिफरेंट वेटलैंड्स पे, हमने पाया कि इन सबके प्रोडक्शन में शार्प डिक्लाइन आया है, एक्सेप्ट ये सिंघाड़ा छोड़ के बाकी सभी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहे हैं। और ये वो सारी चीजें हैं जिससे आसपास के लोग जो प्राइमरीली किसान हैं बेनिफिटेड होते हैं। जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने अभी हमें कहा कि हमारे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इनकम डबल करनी है फार्मर्स की। तो अगर फार्मर की इनकम हमें डबल करनी है तो सबसे पहले हमें ये भी सोचना है कि क्या वो जो इनकम है वो सिर्फ प्राइमरीली हमें गेहूं और चावल से ही करनी है, धान से करनी है, या दूसरी चीजें भी हैं जो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। किसान उन समय जब वो कुछ नहीं कर रहा है, बहुत सारा सीजन ऐसा है जब वो खाली है, तो वो ऐसी एक्टिविटीज जो इनकम जनरेट कर सकती हैं वेटलैंड से और आसपास के तालाबों से, क्योंकि हर गांव में तालाब हैं, भले से सूख गए लेकिन तालाब हैं जिनको हम रिजुविनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होगा कि हम तालाबों को रिजुविनेट करें, और सिर्फ रिजुविनेट ना करें, साथ में जो उसकी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनकी प्रॉपर स्टडी करें, और किसानों को हम लोग सक्षम बनाएं कि वो जो डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो वेटलैंड दे रहा है, उसको वो वहां पे करे और उससे इनकम पाए। अभी छठ का सीजन था तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, वो एक फ्लावर मार्केट है लखनऊ में जो सुबह सुबह लगती है बड़े माँ बाड़े के पीछे। तो जब मैं वहां गया तो उसको कमल चाहिए थी अपने इवेंट के लिए। तो हमने जाके छोटा सा वो उसकी वो थी कली थी, हमने पूछा ये कितने की है, इट वॉज 50 रुपीज। ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कमल है लेकिन वो उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है और काफी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो हम इस तरीके से हमें बेसिकली मार्केटिंग की और स्ट्रेटेजीज की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है, किस तरीके से हम वेटलैंड से होने वाले प्रोडक्ट्स की जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो बढ़ा सकते हैं, उसका प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग बड़ी डेफिसिट है। वेटलैंड्स में अगर कुछ होता भी है तो वो होता है वहीं पे, वो खत्म हो जाता है। वेटलैंड्स में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम उनको बढ़ा के, प्रोडक्शन बढ़ा के, उनकी प्रॉपर मार्केटिंग करके जो किसानों की इनकम है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की और बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी और मेजर जो चेंजेस हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जो ये काम है वेटलैंड पे, ये इंटरेस्टिंग है, और हमें, मुझे लगता है कि हमें एग्रीकल्चर के साथ इसको जोड़कर ही देखना चाहिए। उसके अलावा डॉक्टर भानु सर भी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जोन वाइज प्लान बनाएं, क्योंकि हर एक एग्रीकल्चर जोन जो है उनकी जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अलग अलग है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है हर एक जोन के लिए जो प्लान्स बनने चाहिए वो भी अलग अलग बनने चाहिए।
तो प्लान्स में हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्लान हम स्टेट के लिए बनाए वो पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन की अपनी अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। तो एक कॉमन प्लान सभी के लिए, सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के लिए जो बनाना है वो बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी। क्योंकि बेसिकली मेरा जो प्राइमरी फील्ड है वो ज्योग्राफी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ज्योग्राफी है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसे हम एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी कहते हैं। एग्रीक्लाइमेटिक जोन्स का जो जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ज्योग्राफर्स की देन है। कई ज्योग्राफर्स हुए जिन्होंने इसे इंडिया में डेवलप किया और दुनिया भर में डेवलप किया। जो ज्योग्राफी का पूरे एशिया का जो पहला डिपार्टमेंट खुला वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुला, और वहां पे एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर मोहम्मद शफी साहब, जो कि बहुत ही इमिनेंट ज्योग्राफर थे, जिनको पद्मश्री मिला 2001 में। तो उन्होंने इंडिया में एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को शुरू किया। तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर को बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको उनसे जोड़ती है। तो बेसिकली जो ह्यूमन और एग्रीकल्चर और क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, सॉइल, बाकी चीजों का जो इंटरेक्शन है उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो जरूरत इसकी भी है कि हम बेसिकली एग्रीकल्चर को सिर्फ एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ उनके साथ जोड़ के नहीं, बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरह देखें, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उसके साथ जोड़ें। और फिर मुझे लगता है कि जो आउटपुट होगा वो बहुत नॉवेल होगा, न्यू होगा, और ज्यादा बेहतर प्लान्स जो हैं वो हम मोस्ट प्रोबेबली एग्रीकल्चर के लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू काशिफ साहब, बहुत अच्छे से आपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को भी देखते हुए इस बात को रखा। दरअसल बहुत चीजें अभी समझने की आवश्यकता है। हम एक लिटरेचर पढ़ रहे थे और इसी वर्कशॉप को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होना चाहिए और क्यों ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो मुझे उस डॉक्यूमेंट में बहुत मतलब ऐसी चीजें समझ में आई, ऐसी चीजें देखने को मिली जो मुझे लगता था कि शायद सबके सोच नहीं है, या सोच है तो समझ नहीं है। वो कहते थे कि हमारा जो जुड़ाव है किसी भी चीज से वो कैसा है। एक छोटा उदाहरण हम देते हैं। लोग कहते हैं कि एक पौधा है, पौधे को जब हम प्रेम से देखते हैं, उसके अगल बगल म्यूजिक की व्यवस्था करते हैं, ये करते हैं, तो वो पौधा अच्छे से ग्रो करता है, हेल्दी होता है, उसके पत्तों में चमक होती है। और जब कोई दूसरा पौधा है जो उसको हम ऐसी जगह गंदगी में लगा देते हैं, ऐसे उसमें हम माहौल में रख देते हैं जहाँ बहुत अच्छा माहौल नहीं है, वो प्रेम में वातावरण नहीं है, तो वो पौधा गंदा दिखने लगता है, खराब दिखने लगता है, जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह पड़ते हैं, वो पौधा चमक उसकी मर जाती है। तो शायद ये जो हमारे व्यवहारिक तरीके हैं, हमारा काम करने का जो तरीका है, सोचने का ढंग है, ये भी पौधों को प्रभावित करता है। ऐसा मुझे उस डॉक्यूमेंट से विश्वास हुआ कि हम जिस तरह से सोचते हैं शायद पौधा हमको रीड करता है। हम उसको रीड कर पाए ना कर पाए, पौधा हमको रीड करता है और फिर हमारे गुणों से वो खुद भी प्रभावित होता है। पता नहीं, अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात जो कही थी कि जब हम वेटलैंड की बात करते हैं तो पूरा माइक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो सिस्टम, वहाँ का जोन जो है वो प्रभावित होता है। संतोष जी ने भी इसी बात को कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अतिरिक्त भी हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारा इमोशनल रिलेशनशिप खेती से क्या है। क्या कोई भी व्यक्ति जो खेती करता है वो खेती से खुश हो रहा है? कितने प्रतिशत लोग? शायद 2-4% लोग हों जो औद्योगिक खेती करते हैं, लेकिन 90%, 95%, 98% गांव का आदमी जिसकी छोटी मार्जिनल वो है, लैंड होल्डिंग है, वो तो कभी शायद उसको अपने खेती को देख करके खुश नहीं होता। वो कहता पान की दुकान खोल लेना आसान है और अच्छा है, जिंदगी अच्छी कटेगी बनस्पत इसके कि 2 एकड़ खेती हो मेरे पास। तो ये एक चीज है। दूसरा ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। हम क्या खेती के साथ, खेती करने वालों के साथ, किसानों के साथ ऐसा कोई ट्रस्ट सिस्टम बनाते हैं जो अच्छे खुशी खुशी माहौल में खेती करें, जो समझें कि हमें कैसे करना है। एक इस पर डिस्कशन जो होता है, एक्चुअली कहते हैं कि डिस्कशन जो हम करते हैं, एक्चुअली ये कंसल्टेशन होना चाहिए। डिस्कशन कंसल्टेशन मोड में हो। कंसल्टेशन मोड में हम समस्या के समाधान के लिए बैठते हैं
और ये जब हम समाधान के लिए बैठते हैं तो नॉन एग्रेसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर हम एग्रेसिव पार्टिसिपेशन करते हैं तो शायद हमारा वहां से चला जाना उचित है, न कि बैठना। कहते हैं कि कलेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ आइडियाज होनी चाहिए। हमारे जो विचार हैं वो कलेक्टिव कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा विचार है और हम कहना चाहते हैं छोड़ो जाने दो, हम क्यों कहें, क्या फायदा है इसमें कहने से, इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम उसको नॉन पर्सनलाइजेशन ऑफ आइडियाज, किसी को हम पर्सनलाइज न करें, और प्रॉब्लम डेफिनेशन, कोई समस्या होती है तो हम उसको डिफाइन करें, अपने तरीके से डिफाइन करके हम लोगों के बीच में रखें। क्योंकि जब तक हम इन मुद्दों को डिस्कस नहीं करेंगे, कंसल्ट नहीं करेंगे, कंसल्टेशन मोड कहते हैं, कंसल्टेशन मोड होना चाहिए। कंसल्टेशन मोड में किसी का कोई इशू नहीं होता, वो कॉमन इशू होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम पॉसिबल सोल्यूशन, कलेक्टिव पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढते हैं, और जब कलेक्टिव पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढते हैं तो रिफाइन करते हैं कि उनमें से कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जो अच्छा होगा हमारे लिए, बेहतर होगा हमारे क्षेत्र के लिए। उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा, और उस प्रोसेस को करने के लिए कंसेंसस हमें ढूंढने की जरूरत है, कंसेंसस एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। और फिर हम्बल सबमिशन ऑफ विल ऑफ मेजॉरिटी। जब वहां से हम बाहर आते हैं तो मेजॉरिटी का विल हम सबमिट करते हैं, हम अपना विल नहीं सबमिट करते कि हमने तो ये कहा था, उन्होंने ये कहा, क्या फायदा, हम वो करें चाहे ना करें, हमने तो अपनी बात कह दी। कलेक्टिव एंड एफर्मेटिव एक्शन, जब हम कलेक्टिव एफर्मेशन करते हैं, कलेक्टिव आइडिया रखते हैं, एफर्मेटिव एक्शन वो करते हैं, तब जाकर के वो काम सफल होता है, तब हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो मुझे इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मन में आया, शायद ये अच्छा उचित लगे न लगे, अगले स्पीकर को करने से पहले मैंने सोचा कि हमारा डिसीजन जो है कई बार प्रभावी क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे बिंदु हैं जो जुड़ नहीं पाते हैं। हम मैकेनिकल तो बहुत कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन ना हमारा हेल्थ मैकेनिकली इंप्रूव हो रहा है, ना अभी बात हुई जो इंडेक्स की बात कर रहे थे काशिफ साहब, हाँ, कि वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहे थे। तो जब हम वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वो इंडेक्स हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, जब हम उसमें वो इमोशंस नहीं डाल रहे हैं, वो हम कलेक्टिव थॉट प्रोसेस एक जगह नहीं हो रहा है, हार्मोनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि चाहे ह्यूमन हेल्थ की बात करें, एनिमल हेल्थ बात करें, सॉइल हेल्थ की बात करें, या फिर वेजिटेबल हेल्थ की बात करें, इन सब हेल्थ के लिए हमें एक इमोशनल बहुत जरूरी है। तो इसी बात के साथ में हम अपने बीच में हमारे राकेश साहब हैं, योगेश जी, एक्चुअली उनको आना था लेकिन वो कहीं मीटिंग में व्यस्त हो गए हैं। अभी योगेश जी जुड़े हैं क्या आप? जरा देखिएगा भैया, मिस्टर योगेश कुमार एचसीएल फाउंडेशन से नहीं है? अच्छा, हाँ, वो किसी मीटिंग में व्यस्त है, एक्चुअली उन्होंने कहा था, हरदोई में रह गए हैं वो। तो राकेश जी आए हुए हैं, और ये लीड हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के, एग्रीकल्चर उसके एचसीएल फाउंडेशन के। यहाँ पर जो हरदोई जिले में प्लान चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें ये लोग खेती के दिशा में कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने कुछ विचार इस कार्यक्रम के लिए, जो कि COP21 के लिए यूपी की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को डबल करने, फार्मर्स की इकोनॉमी को डबल करने, और यहाँ एक 28 COP28 में, जी COP28 में 21 is history. सॉरी ओ एक्चुअली शुरू वहीं से हुआ था, मोदी जी गए थे तो वही याद रहता है, पेरिस एग्रीमेंट। तो COP28 में इन बिंदुओं को लेके जाएंगे लोग, तो अगर आप विचार रखेंगे तो अच्छा होगा। वो दे हाँ, क्योंकि वहाँ पहुँच जाएगा। पहुंच जाएगा, थोड़ा सा इधर कर ले। Thank you, sir. Thank you, Brigadier sir. Thanks for inviting SCL Foundation for saying. हिंदी में भी बात करें तो ठीक रहेगा, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो लगे वो। अच्छा, आप ऑडिबल हैं उधर दूसरी तरफ, पूछ लीजिए एक बार जरा। आ रही? ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि
जब हम रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं या कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में, तो कुछ थोड़े से फैक्ट्स हैं। सबसे पहली अच्छी बात है कि वी आर इन यूपी, तो लगभग टोटल जो फूड ग्रेन है इंडिया का 90 to 20% यूपी देता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और दूसरा एक जो जब गवर्नमेंट ने कुछ सोचा इसके बारे में 2008 में, पहले नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए बना। अब एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर विदाउट क्लाइमेट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें इसके लिए कुछ बनाए गए कुछ पॉइंट्स दिए गए कि कहाँ कहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान में एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को रखा गया मिशन के रूप में। सोलर मिशन, इफिशियंसी मिशन, यूपी ग्रीन फॉरेस्ट्री मिशन, जल मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन और सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन। ये सारे एक मिशन बनाए गए जिन मिशन के रूप में हम लोग आगे काम करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जब हम पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर के फोकस एरिया में क्या था? एक सॉइल वाटर मैनेजमेंट था, स्ट्रेस टॉलरेंट एंड क्रॉप वेराइटीज थी जो ड्राई लैंड, वेट लैंड में अच्छा परफॉर्म कर सके। मीथेन मैनेजमेंट था राइस के लिए, डाइवर्सिफिकेशन था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री को इंक्लूड करना था, फार्मर फील्ड स्कूल करना था, और एक क्लाइमेट प्रूफिंग एनिमल हस्बेंड्री था कि एनिमल हस्बेंड्री में हम कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को ले जाएं। इसमें कुछ बहुत सारी चीजें बहुत सारे पूर्व के वक्ताओं ने कही हैं जो समझ में भी आई। एक्चुअली एग्रीकल्चर में जो हम बहुत पहले से करते आए हैं, जब भी हम बात होती है तो हम तुरंत बोल देते हैं कि हमें थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच से सोचना चाहिए। तो एक्चुअली हमारा और ट्रेडिशनल हमें नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनली हैं और बहुत सारी साइंटिफिक भी हैं, तो हमें उन्हें प्रूव करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। जो अगर इनिशिएटिव की बात करें कि क्या करना चाहिए, हमने बहुत सारा सुना। बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट और एचसीएल फाउंडेशन जो आपके पड़ोसी जनपद हरदोई में हम लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख किसानों के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में अभी बहुत सारे सहायक हैं और ये हमारे मिशन से मैच भी कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में थोड़ा सा ऐसे बताना चाहूँगा जो आज बात भी करनी चाहिए और जिसके बारे में थोड़ा समेकित भी है। तो सबसे पहला एक हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया वसुंधरा, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक पूरा इंटरवेंशन डिजाइन किया है वसुंधरा। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी हमारी वेस्ट लैंड पड़ी थी, तो वेस्ट लैंड में हमने गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट के साथ पार्टिसिपेट किया, उनके साथ एमओयू साइन किया। सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा पार्टनर है उस प्रोजेक्ट में। तो जितने भी हमारे वेस्ट लैंड थी, तो हम उसमें कैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करें और कैसे फार्मर्स को ज़्यादा इनकम दे सकें। तो उसमें सॉइल की हेल्थ के लिए हम लोगों ने फिर उसमें प्लाविंग की, तो वाटर स्टोरेज भी हुआ, वाटर पर्कुलेशन भी हुआ, वाटर कंजर्वेशन भी हुआ। फिर उसके बाद उसे इन्वॉल्वमेंट करके ढैंचा और जो क्रॉप रोटेशन की बातें हो रही थी, तो उस पे हम लोगों ने किया। तो वी आर ग्लैड टू से कि प्रोडक्टिविटी जहाँ पे 0 थी वहाँ पे 2 कुंटल या 3 कुंटल पर एकड़ निकलनी शुरू हो गई फर्स्ट ईयर से। और नाउ अगर हम बात करें कि 3-4 साल बाद, तो हम लोग एक अच्छी स्थिति में हैं, 10 से 15 क्विंटल वहां से प्रोडक्टिविटी निकलनी शुरू हो गई। अब दूसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत सारी बातें हो रही। एक्चुअली अगर आप फार्मर्स के इनकम की बात करते हैं, डबल की करने की बात करते हैं या उससे ज्यादा भी बात करते हैं, तो वी हैव वेल प्रूवन प्रोजेक्ट जहां पे हमने फार्मर्स की इनकम 5 टाइम्स की है। बट इट इज नॉट पॉसिबल अगर आप क्रॉप वही रखते हैं। अगर आपको फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है तो उसके लिए आपको व्हीकल बदलना पड़ेगा, जो वो क्रॉप कर रहा है पहले से वो क्रॉप बदलना पड़ेगा अगर आपको फास्ट ग्रोइंग जाना है। तो ट्रेडिशनल टू हम लोगों ने वेजिटेबल में बहुत सारे फार्मर्स को कन्वर्ट किया, और बहुत सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज वी हैव इन्वेंटेड सम, जैसे 3G कटिंग्स। तो 3G कटिंग्स अगर हम करते हैं तो कुकुर बीट्स जो हैं, इसमें से प्रोडक्शन लगभग 5 to 10% बढ़ जाता है, जो हमारे कुकुर बीट्स अगर आप लौकी की बात करें। और
काफी खूबसूरत और छोटी छोटी लौकी होती हैं और वो थोड़ी हार्ड नहीं होती, तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। उस पे हम लोगों ने काम किया और वेजिटेबल्स में डाइवर्सिफिकेशन के हमने बहुत सारे मॉडल बनाए रबी, खरीफ और जायद के लिए। एंड क्रॉप इंटेंसिटी हमने बढ़ाई, जो हरदोई की क्रॉप इंटेंसिटी लगभग 60% थी, अभी वो 130% है हमारे प्रोजेक्ट एरिया में। तो हम लोगों ने बहुत सारी क्रॉप की। दूसरा, जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो रिस्की सा क्रॉप हो जाता है, तो फिर उसके अंदर भी बहुत सारी मिक्स्ड क्रॉपिंग हम लोगों ने किया है और उसके डिफरेंट मॉडल बनाए हैं। एनबीआरआई के साथ हम लोगों ने एक पार्टनरशिप की है नेशनल फ्लोरिकल्चर मिशन में, और बहुत सारे फूलों की हम लोगों ने खेती करवाई है। हमारे अभी करीब 400 के आसपास फार्मर हैं जो फूलों की खेती कर रहे हैं। और जब हम इनकम भी की बात करते हैं या रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा कि वी आर नॉट ओनली ग्रोवर। जैसे फार्मर्स की बात करें, फार्मर इज नॉट ओनली ग्रोवर। हमें एक फार्मर्स का बिहेवियर है कि वो अपने खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा, हम जैसे लोगों का काम है कि उन्हें ग्रोवर से थोड़ा सा स्मार्ट थिंकर बनाना है। हमें ये मालूम है कि फ्लावर की सबसे ज्यादा डिमांड है दिवाली के आसपास, तो वी हैव प्लान्ड कि हम, और हमें ये मालूम है कि इसकी फर्स्ट पिकिंग जो 50 डेज में हो गई। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है। जो हम लोगों ने किया है कि उनका ट्रांसप्लांटेशन हमने 50 डेज बिफोर करा दिया। देन अब जो प्राइस लेकिंग होती थी, वही फ्लावर 2 रुपए किलो भी बिकता है, वही 100 रुपए किलो भी बिकता है। फ्लावर में कोई अंतर नहीं, बस टाइमिंग थोड़ी सी डिफर हो जाती है। तो हम लोगों ने वैसे सोचा, वैसे थोड़ा सा सोचना चाहिए अगर फार्मर्स को हम लोग बढ़ाते हैं। बाकी अगर हम लोग नैनो आर्चर्ड पे बात करें, तो आर्चर्ड पे हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। जैन इरिगेशन के साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप की। तो बनाना पे हम लोगों ने अच्छा काम किया है। गुआवा पे हमने बीएनआर भी जो रेजिलिएंट है और काफी बड़ा होता है, फार्मर्स को अच्छा इनकम देता है, उस पे हम लोगों ने काम किया है। और अभी वो पूरा एरिया, और वी कैन नॉट थिंक कि हाउ वी आर सपोर्टिंग। जब हमने फार्मर्स को बीएनआर भी लगवाया तो ऑब्जेक्टिव क्या था? फ्रूट का। बट स्मार्टनेस कहाँ से आती है? मलिहाबाद के नर्सरी ग्रोवर को पता चला कि इन्होंने बीएनआर भी लगवाई, तो उन्होंने उसे एज ए मदर प्लांट यूज कर लिया और फार्मर्स को एक अलग से इनकम देने लगे वो। तो वहां से वो जाके कटिंग्स ले आते हैं, तो 10 रुपीज पर कटिंग्स देते हैं। तो फार्मर्स को फ्रूट से ज्यादा जो इनकम होने लगी अब उसकी कटिंग से होने लगी है। तो वो भी एक तरीके का एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। अब उसके बाद कुछ हम लोगों ने एक हमने और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एग्रीकल्चर, हमने एक बड़ा सा काम किया रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए। हमने कैट सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक 4 एकड़ का लैंड है जिसपे हमने सारे रिसर्च फार्म एस्टेब्लिश किए। तो हाउ टू लैंड रिक्लेमेशन से लेके कौन सी वेराइटीज कहाँ से आती हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पॉली हाउस, ईच एंड एवरीथिंग, फार्म मैकेनाइजेशंस। सो और वहाँ पे डेली ट्रेनिंग्स चलती रहती है। मोर देन 1 लाख फार्मर्स को हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग दी रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए और एडवांस एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ पे सारे कौन सी वेराइटी कैसे परफॉर्म करेगी, विच टाइप, व्हाट टाइप, हाउ टू फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। दूसरा, हम लोगों ने एक अच्छा काम किया है एग्रीकल्चर में। जब हम क्लाइमेट रेजिलिएंट की बात करते हैं तो वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल आता है, हम शायद अनदेखी करते हैं उसे। तो होता क्या है, जब भी आप 2 काम देखेंगे, एक तो हार्वेस्टिंग जो कटाई वाला होता है, एक ट्रांसप्लांटेशन जहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन होता है, एक वीडिंग। ये 2-3 ऐसे काम है जो अभी भी उनके पास हैं। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा अगर इन्वायरमेंट नहीं सही है या बारिश होने लगी, ऐसा कुछ होने लगता है, तो करीब 20% हमारा अनाज, आज का जो डेटा है कि 20% हमारा अनाज खेतों में खराब हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी बात है और स्मार्ट बात है कि उसे कैसे निकालें। उसके लिए हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे टूल्स, स्मॉल फार्म्स इक्विपमेंट्स दिए महिलाओं को। 10 हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना दिए डिफरेंट लोकेशंस पे। सो वुमेन आर डूइंग वेल, कि वो जाती हैं, जो काम वो 1 एकड़ की अगर हार्वेस्टिंग वो 3-4 दिन में करती हैं, तो वो विद इन 2 आवर्स वो ली मशीन काट के वो इस तरीके से। फिर उसके साथ वो पराली जलाने को भी एड्रेस कर रहा है। अब उसमें
फायर लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो और जानवरों के लिए चारा भी आ जा रहा है, तो ये जो छुट्टा जानवरों की एक समस्या है, तो उस पे भी हम लोगों ने काफी काम किया है। एक हम लोगों ने एक क्राफ्ट है ऑर्गेनाइजेशन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, उस पे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री पे काम कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम किया, इसमें सोलर पंप्स पे काम किया, ड्रिप इरिगेशन और जितने भी हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन है। हमने जो सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, तो उस फार्म में हमने एक फार्म पॉन्ड भी बनाया है, और जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं तो हम अपने फार्मर्स को ये भी बताते हैं कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं, और वाटर बजट एग्रीकल्चर आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के साथ एक MOU किया, और SCL फाउंडेशन ने एक पूर्वा ग्राम पंचायत है, तो यूपी का वो फर्स्ट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज घोषित हुआ है पूर्वा। तो उस पे हम लोगों ने SCL फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के साथ मिलके एक पूरे GPs को भी हम लोगों ने आइडियल बनाया हुआ है। सेकंड, उसके बाद हम लोगों ने एक क्लाइमेट स्मार्ट पे काम किया है कि अपने फार्मर्स को पेस्टिसाइड, तो 80% पेस्टिसाइड का लोड कम किया हुआ। एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि जो भी पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनियां या कुछ एग्रीकल्चर्स के लोग हैं, तो दे आर नॉट सेइंग कि एक्चुअली जब हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं। स्टार्ट इसलिए हुआ था कि जब उसमें कोई पेस्ट या डिजीज हो, बट दे आर सेइंग कि अगर आपकी क्रॉप इतने दिन हो जाए तो यू शुड फर्स्ट स्प्रे, यू शुड सेकंड स्प्रे। तो दे आर नॉट सेइंग व्हाई स्प्रे इज नेसेसरी। तो वहां पे हम लोगों ने काम किया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, तो 80% पेस्टिसाइड का लोड कम किया हुआ है तो यहाँ पे। और इस चीज को हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे अपने रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट किया हुआ है SCL फाउंडेशन ने। इसके बाद हम लोगों ने एक अभी सांडी बर्ड सेंचुरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों की बात चल रही है। वी आर गोइंग टू देयर फॉर द डूइंग की व्हाट वी कैन डू वहाँ पे। सो ये सारी चीजें जो है हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। अगर जैसी बात हो रही थी AI इन एग्रीकल्चर, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में हम लोगों ने पहले इफ्को के साथ काम किया, टेक्नोलॉजी बेस। एक्चुअली अभी क्या होता है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में बात होती है तो ये बड़े फार्मर्स तक सीमित रह जाती है। तो हम लोग अभी क्रॉपिन, सच्योर एंड फार्म से 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वी आर एक कंसोर्टियम बना रहे हैं, जिससे हम छोटे किसानों को बिल्कुल स्पेसिफिक और डायनेमिक उनको हम एडवाइजरी दे पाए। अभी जब फार्मर्स को हम कोई एडवाइजरी देते हैं तो हम ऐसे एडवाइजरी देते हैं कि 40 किलो पर एकड़ आपको देना है, तो बट टू वाई 40 किलो पर एकड़ फार्मर्स उतना कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो एग्जैक्ट उसका जितना खेत है वो उसमें कितना डाले, कितना फर्टिलाइजर डाले, कब डाले और क्यों डाले। अगर उसकी एक ब्लैंक हमेशा रिकमेंडेशन होती है एग्रीकल्चर में कि इतना नाइट्रोजन 120 किलो डालना, 120 किलो डालना है, बट भाई सॉइल टेस्टिंग कराई क्या। तो वी हैव आल्सो इनबिल्ट सॉइल टेस्टिंग मशीन्स। हमारी सॉइल टेस्टिंग मशीन्स भी हैं, जहाँ पे फार्मर्स के साथ जो फार्मर्स ट्रेनिंग करने आते हैं तो दे आर कमिंग विद देयर सॉइल, और जाते वक्त तो वो रिजल्ट भी ले जाते हैं। तो फर्स्ट सेकंड सॉइल टेस्टिंग को एक जो पूरा सॉइल टेस्टिंग का सिस्टम है, तो उसे फार्मर्स को हमने बहुत सारा उस पर अच्छा काम किया हुआ है, बट फार्मर्स को उसे रीड करना नहीं आता है। जब उसे रीड करना नहीं आता और वो समझ नहीं पा रहा, तो हमारा ऐसे मतलब इतने महत्वपूर्ण से इंटरवेंशंस जो है थोड़े से वैसे हो जाते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन ओवर दैट कि फार्मर्स को सिर्फ रीड करना आ जाए, समझना आ जाए, उन्होंने देखा आ गई सॉइल। आवाज नहीं आ रही सर जी, आवाज नहीं आ रही। अभी देखिए अभी अभी आ रही है। Yeah, it is working now. Thank you. हाँ, तो कुछ हिल गया होगा। हमारे पास हमने देख लिया कि हाँ हीमोग्लोबिन की कमी, बट व्हाट काइंड ऑफ हमें क्या डालना है खेत में। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने 3 एग्रीकल्चर मोबाइल एग्रीकल्चर वैन्स हैं हमारे पास, तो बिल्कुल ऑडियो विजुअल है, और वो अभी आज के इक्विपमेंट से सारे लैस हैं। तो वो फील्ड में जाना, वीडियो फोटोग्राफी, और अपने जो फार्मर्स ने अपने यहाँ जो काम किया है, कुछ एरिया हमने अपने
जो कैट सेंटर हम बता रहे हैं कुछ फार्मर्स को दे दिया, तो फार्मर वहां पे आते हैं, वो करते हैं, वो अपना प्लॉट लगाते हैं, फिर वहां पे करके देखते हैं, तो फिर उन्हें विश्वास हो जाता है, यस वी कैन डू इट, देन दे आर गोइंग बैक हिज फील्ड और दे आर डूइंग। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you. Thank you, Rakesh ji. कहाँ जाते थे आप? वनीला मिल्क जी, चलेंगे एक तो बार। हाँ विजिट करना है। आप बहुत अच्छे, sorry जी आप नहीं प्लीज। Just we had discussed with डॉक्टर भानु प्रताप Dr. Bhanu Prataप हम लोग का सेंटर है वहाँ पे, ट्रेनिंग सेंटर है एग्रीकल्चर स्टेट लेवल का। हम लोगों ने बात किया था, कुछ हमने एग्री एंटरप्रेन्योर्स वहां से डेवलप किए, तो हमारा एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी है, वी हैव आल्सो मिस्ड, तो अभी सीएम सर से भी उन्हें अवार्ड मिला था, और इकोनॉमिक टाइम्स ने नॉर्थ इंडिया की बेस्ट एपीसी अवार्ड दिया था हमारी एचटीपीसीएच को, व्हिच आर प्रमोटेड बाय द एससीएल फाउंडेशन। सो और हमारे पास एक सीड विलेज के लिए सीड इज बेसिक प्रॉब्लम, तो सीड के लिए हम लोगों ने एक सीड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है और सीड विलेज एक प्रोग्राम चलाया है, तो फार्मर्स का सीड वहां पे उगाते हैं, वो लर्न करते हैं, उगाते हैं, उनका खुद का सीड है, वो प्रोसेस करते हैं, देन ले आके देन दे आर यूज। इस पे भी काम कर रहे हैं, पारंपरिक कृषि पे कर रहे हैं। पारंपरिक कृषि पे भी हम काम कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग पे भी है, जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग, बट पेस्टिसाइड पे हम लोगों ने लगभग 36,000 फार्मर्स को हमने पेस्टिसाइड पे किया वेजिटेबल पे, और एक खाद आदमी वर्ष आजकल मेज में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड अगर हम सीरियल्स की बात कर रहे हैं तो मेज में डाला जाता है, तो उस पे भी हम लोगों ने बात करके खाद आदमी वर्ष के लिए हम लोगों ने उस पर ट्रैकिंग स्टार्ट की है, तो हम उसे भी मेज को भी फ्री कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, मेज हम उगाते हैं, या तो हम खाते हैं या तो खिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स फिर हम खाते हैं, तो फिर वो हमारे पास कुछ ज्यादा आता है हमारे यहाँ से, तो हम लोग उस पर बाय पेस्टिसाइड आल्सो ट्राइकोडर्मा वगैरह। ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया। सो हमारे हर फार्मर्स के पास जितने भी वेजिटेबल्स के फार्मर्स हैं, फ्लोरिकल्चर के फार्मर हैं, ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया, सो वो अवेयर भी हाउ टू दे आर यूजिंग, और हम उनको एज ए इनपुट भी दे रहे हैं, तो दे आर यूजिंग ट्राइकोडर्मा एंड ब्यूवेरिया and also all the tribes, sticky pheromones, all the tribes. So each and every farmer having a good knowledge training, and we have also introduced the solar tribe in this season. So that for nocturnal pest. Yeah. तो थैंक यू राकेश जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत उन सारी चीज़ों को जिसके बारे में आम किसान चिंतित रहता है, एग्रीकल्चर को कैसे हम लिंक करें। आपने जो कहा कि हमने सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर या फार्म मैकेनाइजेशन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसका एक मॉडल किया है, और एक पूरा गांव ही इस तरह का है जो क्लाइमेट स्मार्ट बन गया है, और सारे टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं, ट्रेडिशनल भी वहाँ पे दिख रहा है, मॉडर्न भी दिख रहा है, और बहुत सारे और भी जो हम सोच सकते हैं आज के लिए जरूरी है वो दिख रहा है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी। अभी विक्रांत जी पता नहीं शायद बीच में जुड़े नहीं थे, तो उनको इनवाइट करने से पहले हम बता दें कि ब्रिगेडियर पीके सिंह साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग ये जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को वैज्ञानिकों के माध्यम से और तमाम सारे जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं उनके सहयोग से जीडीपी को ही न देख करके, क्योंकि 70% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, तो कैसे अवेयरनेस इसका अच्छे से करें, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको हम दिमाग में रखें, और जो पानी का, वाटर बॉडीज का या माइक्रो इकोसिस्टम का जो संबंध है उन सबको हम देखें। ऐसे ही संतोष जी ने भी अपने व्यक्तिगत अनुभव जो किया है, उन्होंने कहा डाटा के अलावा हम
बहुत सारी चीजें हैं जो समझते हैं। डॉक्टर काशिफ ने भी जो बात की, तो अब अभी आपने सुना होगा राकेश जी को, अगर आप पहले आ गए होंगे तो अब आपसे हमें जो अपेक्षा है कि इस पूरे सिनेरियो को, जो COP 28 को देखते हुए कैसे एक ओवरव्यू देंगे, यूपी कैसे इसमें आगे लीड ले सकता है, या यूपी की समस्याएं, एग्रीकल्चर समस्याएं कैसे कम हो सकती हैं, अपने इकोनॉमी को, फार्मर्स इकोनॉमी को हम कैसे डबल कर सकते हैं, और आगे चल करके एक वर्कशॉप के माध्यम से कैसे हम रोड मैप डेवलप कर सकते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले कुछ वर्षों में लोग तैयार हों। तो विक्रांत जी, अगर एक इसकी सिनॉप्सिस कुछ अगर आप देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saab. Am I audible? या फुल्ली। Yeah. Okay. So I think talking of the coordination first, coordination की बात करते हुए तो आज का ये सब ऐसा हुआ है कि जब ये मीटिंग चल रही थी उसके पैरेलल एक जो COP 28 अभी डेलीगेट्स जा रहे हैं इंडिया से, उनका भी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग सेम टाइम पे चल रहा था। तो आई थिंक this is how what we have to address the coordination, and I needed to be there at both the places. और मैंने ज्यादातर सभी की बात को यहाँ पे सुना और बहुत अच्छे तरह से आप सभी ने अपने अपने विचार प्रेजेंट किए हैं। जनरल साहब के इनिशियल गाइडेंस के अंदर आई थिंक ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है कि यूपी की क्लाइमेट चेंज को लेते हुए स्पेशली एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं। और बाकी सभी संजय जी, राकेश जी, आई थिंक जो अभी एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस, सिर्फ हम क्लाइमेट रेजिलियंस ना देखते हुए उसको एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रेजिलियंस जिसमें क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दोनों को हम एक साथ में देखते हुए आगे जो हमें रोड मैप की एक रचना करनी है, मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग से उसका एक वेरी इनिशियल फाउंडेशन स्टेप हमने आज एस्टेब्लिश किया है। तो जरूरी है कि हम इसमें सभी हितभागियों को एक मंच पे लेके आ सकें और एक मंच पे लेके आए और उस पे सभी के अपनी तरफ से सभी अपनी हिसाब से इस पूरे हाथी को किस तरह से देख रहे हैं, वो अपनी अपनी सोच बिल्कुल निसंकोच होते हुए प्रेजेंट कर सकें और उसमें से जो हम निचोड़ निकालें एक मिलजुल के सभी के एग्रीमेंट से, जिसमें सभी की भूमिका क्या होने वाली है, रोल क्या होने वाला है और क्या समय प्रणाली होने वाली है, उसको हम जब डॉक्यूमेंट करेंगे तो मुझे लगता है वो ही एक रोड मैप होगा जिसको हम यूपी का एग्रीकल्चर रेजिलियंस का रोड मैप के विजनिंग के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके लिए भी कल जैसे मैं यूपी SDMA में था, डॉक्टर साहब और ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब और आप में से संजय जी भी थे, सभी भी थे, तो हम लोगों ने उसके लिए एक MOU, इन्हें कलेक्टिव MOU को साइन करके उसका अगेन पहला स्टेप ले लिया है। अभी कब वो मीटिंग होगी उसका टाइम प्लान किया जा रहा है। आई थिंक फेब के एंड में या अर्ली मार्च में हम एक ऐसा कार्यशाला करेंगे जहां पर सभी हितभागियों को साथ में लेके आके एक मंच पर लाके हम यूपी के DRR रोड मैप को आगे लेके जाएंगे। अब इसी संदर्भ में आज की जो मीटिंग हुई है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए हैं आपकी बातचीत से, तो मैं और मेरी कोलीग हाना की मदद से हम कोशिश करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करके, और वो डॉक्यूमेंट जो COP में मीटिंग शुरू हो रही है उसमें कौन कौन से अवसर हैं जहां पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट, और जो आज की चर्चा में जो पॉइंट्स निकलेंगे उसके बुलेट पॉइंट्स को एज अ स्पीकिंग नोट विल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे कि COP में जो लोग वहां पे हैं हम उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना इन पॉइंट्स को अपनी अपनी बातों पे रख सके जहां जहां पे उस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं। आज की जो भी मीटिंग हो रही है, जो मैं कहता था कि पैरेलल मीटिंग चल रही थी, उसमें से ये भी निकल के आया कि सभी जो हमारे इंडिया से जितने भी डेलीगेट जा रहे हैं सभी अपना अपना प्लान शेयर कर रहे हैं कि कौन किस किस इवेंट में कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन इवेंट्स में कहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं
जहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल है, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप में से कुछ लोगों को भी वहाँ वहाँ पे कोई पोजीशन प्रोवाइड कर सकूं, चाहे वो आप ऑनलाइन ही अपने जो आज चर्चा हुई है उसके पॉइंट्स और मे भी आगे की सोच को देखते हुए उन बिंदुओं को हम वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। तो ये अवसर प्रोवाइड करने की कोशिश डेफिनेटली मेरी तरफ से रहेगी कॉप के संबंध में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे ये ग्रास रूट लेवल से अगर मैं और ये स्टेट के लेवल से जो आज की चर्चा से हम लोग डिस्कशन निकाल रहे हैं, सिर्फ उसको ग्लोबल एडवोकेसी में फीड करना नहीं है। आने वाले समय में हम लोग आई थिंक 20 तारीख को शायद दिल्ली में एक और कार्यशाला करेंगे जिसमें कॉप का क्या डीब्रीफ होगा। उस डीब्रीफ में भी हम यूपी के इस स्पेशली इस सब्जेक्ट के ऊपर देखते हुए स्पेस प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें हम इस विषय को आगे कैसे ले जा रहे हैं। हम जो मेन रोड मैप वाली कार्यशाला होनी है उसके लिए, तो वो भी एक अवसर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो अभी मुझे लगता है कि टेक्निकल पॉइंट्स के बाद ये तो हो गया जनरल कोऑर्डिनेशन के पॉइंट में उपयोग है, और जो डॉक्टर भानु ने मेरे से अपेक्षा जाहिर की है कि कैसे हम इसको आगे लेके जाने वाले हैं, किन ऑप्शनों के थ्रू। तो ये तो मेरी तरफ से ब्रीफ शेयरिंग उसके ऊपर हो गई। जो टेक्निकल डिस्कशंस आज हुई हैं मुझे वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि इसमें आने वाले टाइम में हमें ऐसी जो वेबिनार ऐसा जो आज जो वेबिनार स्टार्टिंग का वेबिनार है, हमें इसको हर 15 दिन में एक वेबिनार करना चाहिए, उसको और नए हितधारकों को जोड़ना चाहिए उसमें। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम डायरेक्टली किसानों को इसमें जोड़ सकें, हम इसको पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस डिस्कशन में जोड़ सकें, तो वो भी एक प्रयास रहेंगे। और जहां तक आज की चर्चा रही है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा 2 बिंदुओं के ऊपर और सोचने की जरूरत है और टेक्निकल इनपुट लेके आने की जरूरत है। एक तो हम जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एग्रो सेक्टर में जो डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री का जो योगदान है उसको भी साथ लेकर चलना है, और उसके साथ साथ फिशरीज और इसके रिलेटेड जितने भी अदर बाय प्रोडक्ट हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, और जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी साथ में देखना है। इन सबको देखते हुए ही अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें आने वाले समय में जो एग्रो सेक्टर को डबल करना है, आई थिंक वो सभी के योगदान से हो पाएगा, केवल हम सिर्फ फार्मिंग के ऊपर या कुछ और बिंदु पर फोकस करके नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा लगता है कि उसके ऊपर हमें थोड़ा और चर्चा करने की जरूरत है। और उसके संबंध में क्लाइमेट और डिजास्टर, स्पेशल डिजास्टर यूपी के संदर्भ में हमें थोड़े डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत है कि जो डिजास्टर हो रहे हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसका क्या असर हो रहा है इस सेक्टर के ऊपर, उसको हम कैसे, उसका न्यूनीकरण कैसे हो सकता है। आई थिंक एसडीएमए का इन्वॉल्वमेंट और मेन लीड लेना वो जरूरी है। और पर अगर हम हितधारकों की बात कर ही रहे हैं तो उसमें क्लाइमेट की हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट के डिपार्टमेंट को साथ लिए बिना भी हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता है। आने वाले समय में हमें उनको इसका केंद्र बनाना है, तो हमें उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी निकालनी होगी कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को हम इसका सेंटर में लेके आ सके हमारे जो भी हम अगले प्रयास करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब मिले जुले प्रयासों से हम डेफिनेटली एक अच्छा रोड मैप बना पाएंगे, और यूपी में जो भी हम विजनिंग और परिकल्पना कर रहे हैं कि एग्रो सेक्टर की इनकम हमारी डबल हो जाए, जो कि मुख्यमंत्री जी का भी विजन ऐसा है, लेकिन वो इनकम डबल हो, वो विकास ऐसा हो जो आपदा रहित हो, वो विकास ऐसा हो जो जिसमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क का न्यूनीकरण हो। उसकी वजह से इन जो रिस्क है वो इंक्रीज ना हो, हमें वो ऐसी योजना का निर्माण करना है। तो ये जो दूसरे बिंदु मैंने बताए हैं रिस्क रिडक्शन वाले, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और मुझे लगता है कि हम अपने जो पेपर प्रोड्यूस स्टार्ट करने वाले हैं, एक अच्छी डायरेक्शन हमने आज इसमें ली है। मैं सभी आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुझे ये अवसर प्रोवाइड करने के लिए,
और thank you Dr. Bhanu for your moderation and lead and all the speakers for your very valuable points. Thank you so much. Thank you. सर ये एक दो issues जो हैं for the with the permission if I can Yes, sir. COP28 की Please. सर एक दो बिंदुओं पे मैं सिंस आप जा रहे हैं वहां पे COP21 COP28 के लिए और विद द डेलीगेशन आप वहां जा रहे हैं और वहां पे आप नेशनल एजेंडा लेके जाएंगे एंड आई एम श्योर आप लोग जो पूरा डेलीगेशन है वो उसके ऊपर काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया होगा और करेगा। एक दो इश्यूज जो हैं जो कि नेशनल लेवल पे आई थिंक वी मस्ट प्रोजेक्ट टू द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द लीस्ट डेवलप्ड एवरीबॉडी टुगेदर देयर, सभी के रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे। एक तो सबसे पहले जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर ये आई एम श्योर कि जो ये डेवलप्ड वर्ल्ड होगा वहां पे वो लॉबी करेगा टू इंक्लूड द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। आई थिंक इसके ऊपर जरूर आप लोगों ने चर्चा किया होगा और जहां मैं समझता हूँ इट्स जो एग्रीकल्चर है ये यहाँ पे जो एमिशन होता है ये सबसिस्टेंस एमिशन है, हमारे लाइवलीहुड के लिए है। And the delegation must put it across very, very forcefully to the developed world there and the countries which are predominantly based on the industrial and the technology के ऊपर है, एग्रीकल्चर कम है, वो लॉबी करेंगे, जरूर करेंगे। वो लॉस एंड डैमेज स्टेट जो फंड के बात होगी उससे वो जरूर लिंक करने की कोशिश करेंगे कि आप भी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हो, अपने चावल पैदा करते हो, उससे भी करते हो। अरे चावल तो हम अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं, हमारी जो पर कैपिटा एमिशन है दैट इज वेरी वेरी लो। एक दूसरा मुद्दा और उसमें वहां पे रेस करने की बात होगी, ये जो कार्बन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट से जो हम इंसेंटिव देने की बात करते हैं और एक कार्बन क्रेडिट की जो ट्रेडिंग हो रही है, आई थिंक जो ग्लोबल इसकी ट्रेडिंग का जो फेनोमेना है और जो ये पूरा इनका प्लान है ट्रेडिंग का, I think that is flawed, sir, in my individual perception, and मैंने इसको थोड़ा पढ़ा भी है, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी की है, इसलिए flawed है ये कि there are many least developed countries हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है, उनके पास सरप्लस कार्बन क्रेडिट है। एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, जो ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं हम जिसको, और जिनके पास रिच कंट्रीज हैं, जिनके पास पैसा है बहुत ज्यादा, ये लोग खरीदते हैं वो कार्बन क्रेडिट और अपने पास फॉसिल फ्यूल ये जलाते हैं। तो व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ फ्लॉड काइंड ऑफ अप्रोच, ग्लोबल अप्रोच, बिकॉज आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग तो कम हो ही नहीं रही है ना, आप नहीं जला रहे हैं, हम आपसे फॉसिल फ्यूल जो क्रेडिट है वो खरीद करके हम जला ले रहे हैं। तो ये एक दो मुद्दे जो हैं मेरा ख्याल है हमारे देश को खूब फोर्सफुली वहां पे जा करके और टेबल के ऊपर पीट करके हाथ रख करके जरूर कन्वे करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर, आई थिंक एसडीएमए भी इससे जरूर थोड़ा वो होगा, तो आप कंसिडरेशन के लिए सर। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सनल ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं हम सबका ओपिनियन है, मुझे लगता है वो पूरे देश का ओपिनियन है। मैं जो नेगोशिएशंस फॉलो कर रहा हूँ पिछले कई सालों से कॉप में, तो मुझे बहुत गर्व भी है और पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं ये सरकार के लेवल पे होती हैं सर। हालांकि हम लोग एज सिविल सोसाइटी कोलैबोरेटर्स, हम लोग भी सरकार को इसमें एविडेंस प्रोवाइड करने में, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हम सपोर्ट करते हैं। और पर हमारी सरकार की तरफ से इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई जा रही है और एक डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए, एक डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए और अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा नेतृत्व भी दिया जा रहा है। तो पुराना जो इतिहास रहा है उसके ट्रेंड्स को देखते हुए तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस बार भी हमारा, शायद इस बार हमारा और भी स्ट्रॉन्गर पोजीशनिंग होगी हमारे इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑन दीज इश्यूज। बट लेट्स सी, आई टेक योर पॉइंट। हम लोग अभी आज जो चर्चा हुई है सर, एग्रीकल्चर
और क्लाइमेट ईयर रेजिलियंस के ऊपर आज की चर्चा के आधार के ऊपर हाना की मदद से और आप सबकी मदद से इसको हम एक पोजीशन पेपर शेप करते हैं आज अगले 3-4 दिनों में। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम आपको ड्राफ्ट देंगे स्पीयर और आईएजी की तरफ से, आप लोग उसको इम्प्रूव कीजिए। हम एक बार वो हमारा एक पोजीशनिंग पेपर हम क्लाइमेट और रेजिलियंस के ऊपर, एग्रीकल्चर रेजिलियंस के ऊपर यूपी एसडीएम की तरफ या यूपी स्टेट की तरफ से वहां पे पोजीशन करेंगे सर। उसमें भी इन सब बिंदुओं के ऊपर हम महत्व देंगे और आई इंश्योर कि जो जो पॉइंट स्पोक्स पर्सन को वहां पे हैं कहा कैसे कैसे इन इश्यूज को वहां पे हम रेज कर सकें उसकी भी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करेंगे। और ये तो बात थी पहली जो आपने एग्रीकल्चर के रिलेटेड कार्बन एमिशन की बात थी, ये जो बात थी वो थी। और दूसरी जो आप कार्बन क्रेडिट की बात या कार्बन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं सर, मैं उसमें भी आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। अंत में आके सर ये सभी लोकल कॉन्टेक्स्ट में स्थानीय स्तर पे या राज्य के स्तर पे, मैं इवन देश के स्तर पे नहीं बात करूंगा, मैं होगा राज्य के स्तर पे, क्योंकि ये दोनों मुद्दे जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट हैं। हमें क्या कानून इस पे बनाने हैं या क्या प्रणाली इस पे बनानी है कार्बन क्रेडिट के ऊपर, कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर, वो यूपी के लिए हम लोग यूपी का जो यूपी प्रशासन और यूपी के जो हितग्राही हैं वो ही डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रोड मैप हम लोग जिसकी अब हम परिकल्पना या जिसकी नींव आज रख चुके हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है कि हमें यहाँ पे क्या अडॉप्ट करनी है और कैसे लेके आनी है। और इसमें भी सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि यूपी को एक मॉडल के रूप में एक अर्ली बर्ड के रूप में देश में इसमें निकल के आना चाहिए, इंक्लूडिंग कार्बन ट्रेडिंग के अलावा जो हम क्लाइमेट बजटिंग के एस्पेक्ट है उसको लेते हुए भी। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत उत्साहित फील कर रहा हूँ कि आज की मीटिंग से और आने वाले टाइम में जो हम लोग करने वाले हैं डेफिनेटली इसमें हम कुछ अच्छे कदम लेके एक अच्छी शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आई डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द इश्यूज व्हिच यू हैव रेज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू विक्रांत, थैंक यू सो मच। और कुछ अभी किसी और साथी को कुछ सवाल पूछना है, कुछ मन में प्रश्न आ रहा है, हमारे जो चाहे यहाँ बैठे हुए कमरे में हो लोग या बाहर के लोग, कोई साथी? सर जी नमस्ते, ध्रुव बोल रहा हूँ बहराइच से। मैं आप ही का नाम ले रहा था सर। ध्रुव। विक्रांत जी नमस्ते, काफी दिनों के बाद आपसे। कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ। हूँ। हम कल आपकी बात कर रहे थे एक्चुअली। जी हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि अभी ये बात हो रही थी कि यूपी के रोड मैप की क्लाइमेट सेंट्रिक एग्रीकल्चर को लेकर के, तो उसमें मैं थोड़ी बातें जोड़ना चाहता था। कुछ हम लोगों ने 4-5 गांव में काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जहां पर नदी कटान से पूरी तरह से विस्थापित हो गया था, पूरा जमीन भी खत्म हो गया था, और वहां पर जहां पर अभी तक ट्रैक्टर से खेती होती थी फिर से जो है बैल से खेती करने का कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को सेग्रेट कर रहे हैं कि वो एक अच्छी सी खेती हो जिसमें कम से कम लागत हो और अच्छी से अच्छी उपज हो। कुछ बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिनको मैं शेयर करना चाहता था कि जैसे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सब्जियों के उत्पादन कम हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साइंस के लोगों को इस पे रिसर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सारे 18 जो है मंडलों में जहां जहां पर जो है परिस्थितियां बदल रही है, अभी 9 क्लाइमेटिक जोन बोल रहे थे, लेकिन एक क्लाइमेटिक जोन में भी कई तरह की परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां और एग्रीकल्चर को जो प्रभावित करती हैं, उसमें हमें कम से कम यूपीएसडीएमए को 2-2, 3-3 पॉइंट्स पे किसानों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनको सेग्रेट करके समझना चाहिए कि किस तरह से किसान जूझ रहा है, किसान कैसे जूझ रहा है, और अपनी चीजों को जो डबल करने की आप लोग बात कर रहे हैं, हमारे एरिया में हम लोगों ने एक एक किसान की आमदनी को 5-5 लाख रुपए तक उसी पर जो है बढ़ा दिया है। कम से कम जितना कि आप सोच सकते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख प्रति एकड़ उनकी आमदनी बढ़ी है, तो हम डबल क्या कर रहे हैं, हम तो 5 गुना 7 गुना तक बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक दूसरी बात है कि किसान जो रिसर्च करता है, जैसे हम लोग रिवर में फार्मिंग कर रहे थे, उसमें फ्लावरिंग जब टेम्परेचर बढ़ जाता नहीं होता है। अब की बार किसानों ने तय किया कि हम घुइया की खेती करेंगे, हम मूंगफली की खेती करेंगे, जिसमें फूल आने की जरूरत ही नहीं है और उसका कंद जो है बढ़ता है, उससे ज्यादा जो है चीज प्रॉफिट हो सकती है। तो किसान की सोच को भी हमें इसमें समझना होगा कि कम से कम लागत में और अधिक से अधिक किस तरह से करें। और अब की बार अपनी 5 गांव में जितने भी पौधारोपण हुआ है, चाहे वो परवल की खेती या किसी का भी, 100%
जो है इससे ट्राइकोडर्मा से 100% लैंड को ट्रीटमेंट किया है, सारे बीजों को जो है बीजामिट से ट्रीट किया है, 100% श्योर किया है। और बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे थे, तो हमें लगता है कि पशुपालन की जो बात अभी कई साथी कह रहे थे कि कुछ कुछ क्षेत्रों में बकरी पालन अच्छा है, कुछ कुछ क्षेत्रों में भैंस पालन अच्छा है, जो कि होगा। हम लोगों ने भी बकरी पालन को प्रमोट किया, तो ये सीखते रहते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग है, अगर उसको हम कहीं से डॉक्यूमेंट करके रख करके और तब बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप सही कह रहे थे कि इसमें किसानों को जोड़ना, किसानों की बात को ही सुपर रखना होगा, तभी हम सफल होंगे। अदरवाइज जो अभी एक साथी और कह रहे थे कि जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं वो जो है हल नहीं छूना चाहते, जमीन वहां खेत में जाना नहीं चाहते हैं और यहीं से बैठे बैठे सारी चीजों को समझना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमें बहुत ही एड्रेस करना होगा कि उनका भी माइंडसेट का क्लाइमेट चेंज होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है वहीं से सारी चीजों को इंप्लीमेंट करा रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, तो इन सारी चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। और इसके आधार पे जब हम रोड मैप बनाएंगे तो हमारा रियल में व्यवहारिक और एक्सेप्टेबल प्लान होगा कि किसान वही चीज जो है अडॉप्ट करता है जो देखता है कि ये सफल है, हमारी आमदनी को बढ़ाएगा, उसके लिए कहने की किसी को जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और पूरी तरह से अब वो ऑर्गेनिक को अपना एक हथियार बना रहे हैं कि इस तरह से जो है हम खेती करेंगे तो इसकी कीमत हम ज्यादा वसूल सकते हैं। 40 रुपए किलो गेहूं की बुकिंग अभी से लोगों ने कर लिया कि हम 40 रुपए किलो गेहूं देंगे जिसमें केमिकल फ्री होगा। सब्जी का भी ऐसी है, जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जो सब्जी हम पूरी तरह से ये अच्छा सा प्राकृतिक सब्जी होगा और इसकी कीमत हम 1.5 गुना ज्यादा लेंगे। तो इसको भी हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और इसी को एड्रेस करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य और हमारे पूरे जो है वातावरण का जो है स्वास्थ्य अच्छा हो। बस मैं इतनी कहना चाहता था कि एक बार आप सभी साथी हमारे बहराइच में आकर के देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उन खेतों को देखें कि किस तरह से किसानों ने किया था। पिछली बार 6,600 बीघे में करे, तब की बार 2,000 बीघे में हो रहा है खेती। और एक मुझे लगता है कि एक मॉडल बन जाएगा 4-5 साल में डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि कैसा मॉडल होना चाहिए, गाँव को कैसे डेवलप करना चाहिए। और वो पूरी तरह से उनके इंडिविजुअल सपोर्ट से हो रहा है, किसी का बाहरी ज्यादा सपोर्ट नहीं है इसमें, केवल उनको गाइड किया जा रहा है, लेकिन हाँ उनके साथ लगातार लग करके काम किया जा रहा है। बस थैंक यू, इतनी शेयर करना था सर। थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? किसी और साथी का कोई प्रश्न? नहीं, अगर नहीं है किसी के मन में तो जो इसमें वोट ऑफ थैंक्स की बात कही गई है मेरे लिए, मैं संतोष जी की बात से ही धन्यवाद प्रस्ताव की बात करूंगा। इन्होंने एक बहुत अच्छा कहा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो हमारे एसडीजी का एक भाग है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसे हो। तो वो शायद कल इसकी शुरुआत की हमारे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने, कि हम कितना जरूरत है हमें गेहूं का और कितना जरूरत है हमें चावल का, और हम कितना पैदा करते हैं, सरप्लस पैदा करते हैं, सड़ाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि भाई 20% नुकसान जो है वो हो जाता है। तो क्या इसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन और सस्टेनेबल कंजम्पशन जो रिसोर्सेज इसमें लगते हैं, वेस्ट होते हैं, इन्हीं के साथ मेरे ख्याल से इन्हीं चीजों को लेकर के हमारे वीसी साहब और ब्रिगेडियर साहब बहुत चिंतित रहते हैं कि यूपी में हम कैसे दिशा मार्गदर्शन करें, लोगों का दिशा दें, लोगों को, अपने किसानों को, कि सस्टेनेबिलिटी आए, रिस्क कम हो। और चूंकि हम कोर एग्रीकल्चर से नहीं बात कर रहे हैं या उसके तरफ से, लेकिन हम एग्रीकल्चर में जहां जहां रिस्क है उन रिस्क की बात कर रहे हैं, और उन रिस्क की बात करते हुए वही समझना चाहते हैं कि हम लोगों का इनकम कैसे डबल हो। और जो मेजॉरिटी है वो जो उससे प्रभावित होती है वो बहुत ज्यादा है। 3 हिस्सा कम से कम आबादी हमारी खेती से प्रभावित होती है, तो वो कैसे हम उनको संभालने की कोशिश करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीसी साहब को कि शॉर्ट टाइम में वो अपनी बात को आए और रख पाए। बहुत व्यस्तता थी उनकी आज, और रोड मैप के बारे में उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि कैसे हमारा रोड मैप बन जाना चाहिए। हम धन्यवाद देंगे अपने ब्रिगेडियर पीके सिंह साहब को
कि इन्होंने किस तरह से हमारे जीडीपी को, हमारे राष्ट्रीय जीडीपी को और वेटलैंड को इससे लिंक किया और ये कहा कि जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है पूरा का पूरा, वो कैसे रिस्क रिडक्शन की दिशा में जा रहा है, रिस्क रिडक्शन के बारे में मतलब कितना न्यूनतम सोच पा रहा है और कितना ज्यादा सोचने की जरूरत है। ये मेरे ख्याल से आज भी जब एसडीजी की बात करते हैं या हम योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की बात करते हैं, हम सेंडई फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो कहते हैं कि एक सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट ये है कि हमारा रिस्क कैसे, हम रिस्क को, नो योर रिस्क रादर, रिस्क को कैसे पहचाने, और वो भी उसमें पहला बिंदु था और आज भी वो पहला बिंदु है हमारे सेंडई के प्रोसेस में। तो हम अभी भी 15 साल नहीं बल्कि 22 साल बीत गए, 23 साल बीत गए और फिर भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिस्क है क्या। तो कितना महत्वपूर्ण है ये समझना, मेरे ख्याल से इसको हमें समझने की जरूरत है। तो ब्रिगेडियर साहब ने इन चीजों को लेते हुए नेट जीरो के बारे में कहा कि कैसे नेट जीरो की बात लोग सोच रहे हैं और 2070 तक वो होगा। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने और कही कि कार्बन क्रेडिट का जो बाजार है, दरअसल हम सब कुछ अपने बाजार के नजर से देख रहे हैं, हम विकास के नजर से शायद नहीं देख रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी के नजर से नहीं देख रहे हैं। हालांकि एसडीजी पश्चिमी क्षेत्र से निकला हुआ शब्द है, लेकिन उस शब्द को आज भी हम उतने ही हल्का आंक रहे हैं जितना हल्का हम कल आंक रहे थे सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हम मैकेनिकल सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, मार्केट सस्टेनेबिलिटी की बात शायद देख रहे हैं, हम ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी की बात है, हम प्लेनेटरी सस्टेनेबिलिटी की बात है, इनको हम नहीं देख पा रहे हैं। वरना आज एंथ्रोपोसीन जैसी बिंदुओं पर चर्चा करने की जरूरत नहीं महसूस होती। हमारे जो संतोष जी हैं, इन्होंने भी, इनको भी बहुत धन्यवाद देंगे। इन्होंने कैसे उन मुद्दों को जो इसको उन्होंने खुद महसूस किया, उन्होंने कहा हम आंकड़े की बात नहीं करते हैं, हम उन बातों की बात करेंगे जिसको हमने खुद महसूस किया, खुद देखा है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में। तो हम उन चीजों को कैसे, वो बिंदु हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमको इसको समझने की जरूरत है। और उसमें जो कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे कि हम विद्यार्थियों की संख्या कैसे बढ़ाएं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की, या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो निकल के आते हैं, ग्रेजुएट्स की, उनकी क्वालिटी कैसे हम कहें। और जो प्राइम मिनिस्टर का 10 पॉइंट एजेंडा है कि हम नेटवर्क शिक्षा संस्थानों का बनाएं, पॉइंट 6 जो है यूनिवर्सिटीज का, तो इसके पहले भी हम लोगों ने इस बिंदु पर चर्चा की है और उसमें भी बार बार ये इस मुद्दे को उठाते हैं कि वो नेटवर्क क्या करेगा, कैसे इन सस्टेनेबल की बात, कैसे हम रिस्क रिडक्शन की बात, और कैसे हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें टेम्परेचर की बात को समझेंगे। और लगभग सभी लोगों ने इस बात को कहा कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कितना 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 हमारा क्रॉप रिडक्शन होगा। तो ये बिंदु जो है वो रखे गए। और इनके साथ साथ काशिफ साहब ने जो एक बड़ा बिंदु रखा, उनको भी धन्यवाद देंगे। वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स, वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स जो है वो मेरे ख्याल से एक समझ विकसित कर रहा है, एक नया ईरा ऐड कर रहा है, क्योंकि हम सॉइल हेल्थ की बात करेंगे, हम एनिमल हेल्थ की बात करेंगे, हम वेजिटेशन हेल्थ की बात करेंगे, उसके बाद नंबर आएगा ह्यूमन हेल्थ की बात करने की। उसके पहले हम कभी ह्यूमन हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ अस्पताल पे अस्पताल, अस्पताल पे अस्पताल, रिसर्च स्टेशन सारे खुलते जा रहे हैं, पीजीआईज वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं टर्शरी हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि हमको प्राइमरी समझ की जरूरत है। हम प्राइमरी समझ ही नहीं पा रहे हैं, टर्शरी लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो ये शायद हमारे इस पूरे चर्चा का एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें बहुत समझने की जरूरत है, जिस पर हमें ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और ग्लोबली हमको लीड करना है। जैसे विक्रांत ने कहा कि भाई हम बड़ा, हमारा मजबूत पावा है और हम पूरे साउथ एशिया नहीं, डेवलपिंग और डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर के
इसमें आगे बढ़ेंगे और निश्चित है कि अपने मुद्दे को रखेंगे। वो अलग बात है कि कितनी सफलता मिलती है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन रखना मुद्दा। राकेश जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाने की कोशिश की कि जो डिफरेंट मिशंस बने हैं, या जो यूपी का हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, 90% हम फूड ग्रेन यहाँ से सप्लाई करते हैं और पता नहीं कितने परसेंट पंजाब से आता है। तो इसमें सॉइल एग्रीकल्चर इन सब को लेकर के फार्मर फील्ड स्कूल में सबकी चर्चा करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही कि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक गांव में कि कैसे ये सारी चीजें एक जगह पर जाके देखी जा सकती है और किसानों को दिखाया जा सकता है कि हम कर सकते हैं। और इस पर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा किसानों का एक्सपोजर किया, ट्रेनिंग दिया और चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कि जो 60% हमारी क्रॉप इंटेंसिटी है उसको एक किसान 130% कैसे लेके जाए, यहाँ तक उन्होंने दिखाया। इससे ज्यादा भी हो सकता है और ये सारा डिमॉन्स्ट्रेशन में अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और ध्रुव भाई खास तौर से उन्होंने भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और उन्होंने भी दिखाया है कि कैसे छोटे से एरिया में उन गरीब किसानों के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित है मोस्टली उस क्षेत्र में, दोआबा के क्षेत्र में, केवल उन जहाँ जिसको लोग वेस्ट कहते हैं कि वहाँ आदमी जो है केवल जीवन निर्वाह करता है और चोरी और बदमाशी के अलावा कोई बात नहीं होती है, वहां पर उन्होंने 2000 किसानों को लेकर के और किस तरह से 2000 हेक्टेयर में किस तरह से खेती की और आज वो 2000 बीघा नहीं, 400 एकड़ 400 एकड़। थैंक यू ध्रुव भाई फॉर करेक्शन। तो 2000 बीघे में किस तरह से वो खेती कर रहे हैं, जिसको लोग वेस्ट लैंड कहते हैं, जहां कुछ नहीं होता है। हम लोग गांव में जब छोटे छोटे थे तो कहते थे कि वहां कुछ नहीं होना है, जाके छींटा फेंक दो। तो ऊसर नहीं सर, वो बालू और वो नदी का दोआबा जो है बालू में, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, छींटा मारा छींटा किसी घास वास का मार देते थे और उसके बाद जब वो उगता था थोड़े दिन बाद तो काट आते थे। ना उसमें कुछ बोना है, ना पानी देना है, ना जुताई करना है, कुछ नहीं, केवल छींटा मार के चले आते थे। शायद वहां इस तरह की खेती करने की बात जो है ये सोचना मेरे ख्याल से बहुत प्रासंगिक है। और प्रासंगिक आज की तारीख में हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो करके दिखा रहे हैं। तो इसके लिए इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और हमारे बीच में एक और साथी हैं, उन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा है। हमारे क्या नाम है, चौधरी साहब। तो ये पत्रकार भी हैं पेशे से और अपने वहाँ बहुत कुछ काम करते हैं फील्ड में, तो बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, तो इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन इनके यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ख्याल से ये अखबार के माध्यम से आपकी सबकी बातों को पहुंचाएंगे जन जन के बीच में। तो हम आभारी हैं सभी साथियों को, और विशेष रूप से एसडीएमए का। वैसे एसडीएमए की ही प्रेरणा से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आभारी होना इसलिए है कि प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैडम फातिमा हमारे बीच में हैं, प्रियंका जी हैं। इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे गौतम सुरेश जी, ये हम लोगों को मिलवा रहे हैं हर बार, तो हम इनके बहुत आभारी हैं। और बाकी जो टीम है यहाँ की, जो हम लोगों के सामने नहीं है, जिन लोगों ने चाय पानी और सारी व्यवस्था और हम लोगों का जो बोझ लगातार पिछले 3 दिन से तो सह रहे ही हैं आज तीसरा दिन है, तो हम सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ? So Vikrant, should we close it? Hana. Yes, sir. We can close it. We can close the session. Once again, thank you. Thank you, Hana. Sorry, मैं तो भूल गया स्पीयर को कुछ कहना। I'm so sorry. It's all right, sir. Sphere and Thank you so much, sir. Sphere and entire team is very, very, very crucial link between all of us.
Thank you so much, sir. It was a wonderful session too. We'll get back with the report. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you very much.